Morning, all participants. Good morning, sir. On behalf of Indian Railway Institute of Financial Management, IRFAM, Hyderabad, I extend warm welcome to each one of you. Today's session on tenders and works contracts. In this session, we have Sri Chandrasekhar, COS PCO Office, Austin Railway. Welcome. It's over to you to commence the session, please. Thank you. Good morning to all of you. Good morning, sir. So today I'll be discussing with you regarding this tenders and works contract, the contract management, out of which you are going to get a few questions in your upcoming examination. Okay. So I will discuss topic by topic. एक topic पढ़ने के बाद उसमें questions कैसा आता है, in what form of objective type or descriptive type, short type. So as I discuss the topic, I will be framing the questions also. So जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ एक टॉपिक है, उसमें questions short type का, objective type का और ऐसे type का कैसा आ सकता है, scope. That way. Okay. Hello. Yeah, banner, is it moving? It is not moving. Slide is not moving. Now? No, not moving. Okay, 1 minute, just hold on. Now is it moving? No, not moving. Yeah, now please. Now it is moving. Yes. No, it is not moving in the slideshow presentation, but it is moving in this mode actually. Okay, but it is very small. The font is very small. If you can make it little. So you can zoom it. That's. Now is it okay, sir? It's okay. Yes. Okay. Now it is moving. Okay. It's moving, please. So before calling the tenders for any work, what is the planning that should take place? This slide will tell you. So the works are classified under these categories under demand number 16. First one is pink book work sanctioned by Railway Board costing more than 2.5 crores. Okay. Then second one is LAW book, which is sanctioned by Railway Board but costing below 2.5 crores. Then next one, LAW means list of approved works sanctioned by GM costing below rupees 2.5 crores and above 2.5 crores also if sanctioned under umbrella. And lastly, LSWP, lump sum works. Every division will be given a lump sum grant to take up the works of small values costing below 2.5 crores. This is the classification of the works under planning. Next, before calling the tender, what are the prerequisites? क्या fulfill होना है? Tender बुलाने से पहले, what are the things that have to be fulfilled? ये 6 items है. These are the 6 prerequisites. What we call them as conditions to be fulfilled. So you can get a question. What is the checklist that should be complied with before calling the tenders, open tenders? So you can mention this. First one is approval of detailed drawings. Second one is detailed estimate sanction होना चाहिए. Third one is tender schedule should be ready.
and fourth one is funds availability, and fifth one is site availability. Location जो होता है ना जिधर work करने के लिए, suppose for example in case of construction of a road or bridge, okay, the site should be readily available. तो स्टेट गवर्नमेंट्स में पहले एक्वायर करके रेडी रखना चाहिए ब्रिज बनाने के लिए. विदाउट ensuring this location availability, site availability, अगर टेंडर बुलाए तो टेंडर फाइनलाइज होने के बाद काम देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार unnecessarily he has to sit idle without proceeding with the work. तो आइडल बैठेगा, उसकी वजह से क्लेम्स हो जाता है. तो इसीलिए साइट अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है. एंड लास्टली मटेरियल्स अवेलेबिलिटी. मटेरियल अवेलेबिलिटी किधर होता है? ट्रैक मेंटेनेंस का काम में रेलवे डिपार्टमेंट हैज टू सप्लाई द ट्रैक फिटिंग्स. जो ट्रैक में जो फिटिंग्स रहता, रेल्स के अलावा, स्लीपर्स के अलावा जो भी फिटिंग्स है वो रेलवे डिपार्टमेंट सप्लाई करेगा कॉन्ट्रैक्टर को. ओके, कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट ब्रिंग ऑन हिज ओन. So these are the 6 prerequisites, both the preconditions or essential items to be observed. So you may get a short note question. What is the checklist before calling the tender? Then next, eligibility criteria. What is the eligibility criteria to be incorporated in the tenders? So railway board said, अगर आपका टेंडर का वैल्यू 50 लाख के बढ़ के है तो इफ इट इज मोर देन 50 lakhs, then you have to stipulate 2 conditions, eligibility conditions. First वाला टेक्निकल एलिजिबिलिटी एंड सेकंड वन इज फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी. तो अगर आपका टेंडर वैल्यू 50 लाख के बढ़ के है तो उस वो टेंडर में जरूरी है 2 एलिजिबिलिटी कंडीशंस होना चाहिए. पहले वाले टेक्निकल कंडीशन, टेक्निकल एलिजिबिलिटी, जो काम करा हो, वो जिस काम के लिए टेंडर बुला गया वो काम में अगर उसका सिमिलर एक्सपीरियंस है वो उसको बोलते हैं टेक्निकल एलिजिबिलिटी. दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सेकंड वन इज फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी कंडीशन. तो टेक्निकल एलिजिबिलिटी, एक क्वेश्चन में कम, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर कॉलिंग ओपन टेंडर्स इन वर्क्स. तो यू हैव टू से देयर आर 2 एलिजिबिलिटी कंडीशंस. वन इज टेक्निकल एलिजिबिलिटी एंड द सेकंड वन इज फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, एंड द टेंडर वैल्यू शुड बी मोर देन 50 lakhs. Then what is the criteria of technical eligibility? Technical eligibility के लिए क्या-क्या requirements चाहिए? तो first one is जो टेंडरर पार्टिसिपेट करना चाहता है वो 3 similar works, 3 काम, similar काम. सपोज एर्थ वर्क है और बैलास्ट वर्क है. तो बैलास्ट वर्क के लिए बुलाए तो बैलास्ट का वर्क कितना रहना चाहिए? 30%, 30%, 30%. ऐसा 3 काम, 3 credentials, 3 experience certificates of similar works, okay, or 2 certificates of 40%, 40%, 40%, 40% का 2, 40% किसमें? एडवर्टाइज वैल्यू में. सपोज आपका टेंडर वैल्यू 1 करोड़ है तो 1 crore, तो हाउ मच इट शुड बी? 40 lakhs, 40 lakhs. Like that, 2 similar works should have been completed. और ये टेंडर में भी हैविंग ओनली 1 वर्क. एक टेंडर के पास एक ही काम है जिसमें उन्होंने ऑलरेडी 60% ही हैज कंप्लीटेड. तो 60% का एक काम, 40% का 2, 30% का 3 पिछले 7 साल में. दिस इज कॉल्ड द क्वालिफाइंग पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट 7 years. So you may get a short objective type में, what is the qualifying period for fulfillment of technical eligibility? You can say last 7 years. तो पिछले 7 साल में ये any of these 3 conditions they should fulfill towards technical eligibility criteria. This is number 1. And ये काम रेलवे डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, जो भी डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट टेंडर कॉल फॉर करेगा उसका ड्यूटी है सिमिलर नेचर ऑफ वर्क्स के लिए लिस्ट सर्कुलेट करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द सिमिलर नेचर ऑफ लिस्ट ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ वर्क्स? The department which will undertake routine works, they will be classified under the similar nature of works and they will be circulated to all divisions. For example, track renewals है. Track renewals में CTR है, complete track renewals, through rail renewals, TFR works, whatever it is, it comes under track renewals.
सिमिलरली ब्रिज का काम है, ब्रिज रिन्यूअल्स। ऐसा एक लिस्ट डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट, अगर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वर्क सर्कुलेट करते हैं, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वाले सर्कुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल वाले ये सिमिलर नेचर ऑफ वर्क्स के लिए सर्कुलेट करते हैं। वो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क ये टेंडरर के पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसका मतलब यह है, ये फर्स्ट टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा? ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिपार्टमेंटल ऑफिसर नॉट लेस देन सीनियर स्केल ऑफिसर, दे शुड गिव द सर्टिफिकेट, experience certificate. And second one is sometimes composite work भी रहता है, मतलब एक वर्क के अलावा दूसरा वर्क्स भी है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के अलावा मैकेनिकल नहीं तो इलेक्ट्रिकल, एसएनटी। सपोज ए वर्क इज हैविंग more than two components, more than one component or two components, and each component should cost 2 crores. तो एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा, व्हाट इज ए कॉम्पोजिट वर्क? ए कॉम्पोजिट वर्क इज ए वर्क इन्वॉल्विंग मोर देन वन डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट। दैट मींस इन एडिशन टू सिविल इंजीनियरिंग एसएनटी का रहता, इलेक्ट्रिकल का रहता, ओवरहेड इक्विपमेंट का रहता। तो ये काम में हर एक कॉम्पोनेंट का कॉस्ट 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। सपोज आपका एक टेंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बुलाया 10 करोड़ का, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का कॉस्ट है 4 करोड़, इलेक्ट्रिकल का है 2.5 और दूसरा एसएनटी का है 2.5। उसको बोलते हैं कंपोजिट वर्क। तो you may get a question, what is a composite work and what is the cost of each component in that composite work? You can give this example. The composite work is a work which involves more than one distinct component and each component cost should be more than 2 crores. Then it is called composite work. उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए? हर एक कंपोनेंट का सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का और एसएनटी का 2 करोड़ का कंपोनेंट है ना, उसमें 60% का एक वर्क, उसमें 40% का 2 वर्क्स और उसमें 30% का 3 वर्क्स। द सेम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सिविल नेचर ऑफ वर्क्स इन केस ऑफ कंपोजिट वर्क आल्सो। मतलब he has to produce for each component a separate certificate for each component in case of composite work. In case of single work like ballast or earthwork or bridge work, straight away he will produce only one certificate. Okay, this is about the technical eligibility criteria and the questions that you may got. Short type का नहीं तो objective type का, some questions can be asked from this component. And next one is the financial eligibility. हम अभी पहले टेक्निकल एलिजिबिलिटी डिस्कस किया, अभी नहीं दूसरा फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें कितना परसेंटेज का वैल्यू पेमेंट रिसीव होना चाहिए? 150%. The tenderer who wants to participate in the tender should have received 150% of the advertised value of the tender. सपोज आपका टेंडर वैल्यू 1 करोड़ है, तो जो टेंडर पार्टिसिपेट करता he should have received 1.5 crore worth of amount. उतना काम उन्होंने गवर्नमेंट के पास करना। वर्क डन फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। जो प्राइवेट कंपनीज के पास जो वर्क करके जो अमाउंट लिया वो इसमें काउंट नहीं होता एज पर द फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। और ड्यूरिंग विच पीरियड ही हैज टू टेक? ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 financial years. Please observe the difference. In the technical eligibility criteria, the qualifying period is 7 years, whereas in the financial eligibility criteria, the qualifying period is previous 3 financial years. So that is the difference. पिछले 3 साल में the tenderer 150 का रकम of the tender value रिसीव होना चाहिए, जो काम उन्हें गवर्नमेंट के पास किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास। अगर प्राइवेट कंपनीज के पास जो किया, the private company the turnover should be more than 500 crores. Suppose in case of private companies, but the experience will be considered only when the private company turnover is more than 500 crores and the company should have been listed in the stock exchange. रेलवे बोर्ड में और एक थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया एलिजिबिलिटी में। सो हर एक टेंडरर गवर्नमेंट के पास अगर नहीं करे तो बड़ा प्राइवेट कंपनीज में काम कराऊंगा जिसका टर्नओवर है
500 करोड़ से बढ़ गया है और जिसका कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गया है, अगर उसके पास एक सर्टिफिकेट लिए तो वो भी चलता है फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी में। अदरवाइज द वर्क डन फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओनली विल बी कंसिडर्ड। ये सर्टिफिकेट कौन देता है इधर? दिस सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्लाइंट मतलब द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट में काम किया वो डिपार्टमेंट से जो सर्टिफिकेट लिया वो भी चलता है, और नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो भी बैलेंस शीट देता है उसमें टर्नओवर कितना मिला वो देख के ये फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। सो इन ऑल द टेंडर्स वेयर योर टेंडर वैल्यू इज मोर देन 50 lakhs, they have to fulfill these two eligibility conditions. First one is technical and the second one is financial. Suppose whether department can relax this or modify this eligibility, railway board said yes you can do. railway board में ये भी कहा अगर 50 लाख के बढ़ गए हैं तो जिसमें डिपार्टमेंट ने एलिजिबिलिटी कंडीशन का स्टिपुलेशन नहीं करना चाहते हैं तब भी वो कर सकते हैं। इसके लिए फाइनेंस का कंकरेंस चाहिए, एफएनसीओ का कंकरेंस और जनरल मैनेजर का अप्रूवल चाहिए। के लिए फॉर रिलैक्सेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यू मे गेट अ क्वेश्चन वेदर स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन बी मॉडिफाइड। यस, इफ सो अंडर व्हाट कंडीशन? उसके लिए फाइनेंस कंकरेंस, विद फाइनेंस कंकरेंस एंड जीएम्स अप्रूवल। तो उसके लिए डिपार्टमेंट में प्रपोजल भेजता है जस्टिफिकेशन के लिए फाइनेंस को, why they want to relax the eligibility criteria in case the tender value is more than 50 lakhs. तो वो भी रिलैक्सेशन दे दिया पहले बोर्ड ने तो एलिजिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट ये बिड कैपेसिटी बोलते हैं इसको, टेंडर्स क्रेडेंशियल बिड कैपेसिटी। बिड कैपेसिटी, व्हेन वी आर आस्किंग बिड कैपेसिटी, व्हेन द टेंडर वैल्यू और वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन 20 crores, उसका कैपेसिटी है कि नहीं ये काम देने के बाद, whether he is in a position to take up this work, उसको बोलते हैं कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो रेलवे बोर्ड ने कहा अगर 20 करोड़ से ज्यादा है तो उसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस का फुलफिलमेंट के अलावा उसका बिड कैपेसिटी का भी इवैल्यूएशन करना चाहिए। तो यू हैव टू इवैल्यूएट द कैपेसिटी ऑफ द टेंडरर अबाउट हिज बिड कैपेसिटी इन केस इफ योर टेंडर वैल्यू इज मोर देन 20 crores। तो कैसा करते हैं, ये फार्मूला दिया, अवेलेबल बिड कैपेसिटी इज इक्वल टू A into N into 2। ये मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क्स एग्जीक्यूटेड एंड पेमेंट रिसीव्ड। जो भी काम किया पिछले 3 साल में उसका वैल्यू कितना है, उसका मल्टीप्लाइड बाय n, नंबर ऑफ इयर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रेजेंट वर्क। जो काम अभी जो टेंडर अभी बुलाया उसमें 1 साल और नहीं तो 2 साल, that is called n, or 6 months. If it is 6 months, it is 0.5. That is called the number of years. Into 2, that is the factor. Value of existing commitment minus value of existing commitments. मतलब suppose already is having some 8 works on hand. Okay, वो 8 works complete करने के लिए कितना amount spend करता है वो? That is called existing commitments. So it should be lesser than this thing. So a bid capacity tenderer shall be assessed based on the details submitted by the tenderer. In case the bid capacity is lesser than the estimated cost of work, then his offer shall not be considered. इसका मतलब क्या है? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने एक 2 crores का वर्क बुलाया, ओके, अभी उसका जो भी ऑन एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स है वो 3 crores है, ओके, 3 crores। अब ये 2 crore देने से क्या कर सकता हूँ? That means his capacity is less. So that means his capacity is lesser than the estimated cost of the work. Then even if he has been found eligible, दोनों टेक्निकल और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी फुलफिल करने के बावजूद भी अगर उसका बिड कैपेसिटी if it is found to be lesser than the estimated cost of work, that is important. So bid capacity should be more than the existing commitments. Yeah, a short note, bid capacity will be evaluated only in case of tenders valuing more than dash 20 crores, that much. And next, price variation clause. A price variation clause है if your estimated value is more than 5 crores,
रेलवे बोर्ड ने कहा इससे पहले 50 लाख था, अभी उसको हटा के 5 करोड़ तक कर दिया। इसका मतलब क्या है, आपका टेंडर वैल्यू इफ इट इज अप टू 5 crores, there is no price variation. So what is the mandatory limit for incorporating the price variation clause in the tender? So you may get a fill in the blank or something like that. It should be more than 5 crores. And what are the salient features of the price variation clause? Example देता हूँ. So price variation calculate करने के लिए बेस मंथ क्या होता है, टेंडर ओपनिंग मंथ होता है। जिस मंथ में टेंडर ओपन किया उसके हिसाब से फ्यूचर इंक्रीज जो भी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो दिस प्राइस वेरिएशन क्लॉज नाउ इट इज अवेलेबल इन जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज 46A. So the base month for price variation clause shall be taken as month of opening of tender including extensions. Suppose आपने टेंडर खोला जनवरी 2020 में, okay, January 20 will become the base month for calculating the future increase. And ये PVC कैसा कैलकुलेट करते हैं, एक महीने लेकर नहीं करते। It will not be done every month. It will be done only in 1 quarter of 3 months. Okay, that is also important. The PVC calculations will be done based on the quarterly. Suppose January, February, March है, जनवरी में एक बार, फरवरी में एक बार, मार्च में एक बार, ऐसा नहीं है। You have to take the average indices of January plus February plus March, take the average indices of that and take that number for calculating the price variation. That is the meaning of this. The price variation will be based on the average price index of the quarter under consideration. Next important condition है EMD. इसमें जरूर एक क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल से, ऑब्जेक्टिव टाइप। EMD वर्क टेंडर्स में कंपलसरी है। नंबर 1, रिलैक्सेशन बहुत कम है, exemptions are very limited. It is compulsory in work standards. Okay, ये कैलकुलेशन कैसा करते हैं, 1 crore अब सपोज आपका एस्टिमेटेड वैल्यू अप टू 1 crore है तो you have to calculate 2% of that. Suppose my estimated value of tender is 80 lakhs, 80 लाख है, तो मेरा EMD कितना होना चाहिए, 2% of 80 lakhs, that is 1.6 lakhs. Suppose my tender value or estimated value is say 1.6 crores. So how to calculate that? Up to 1 crore के लिए 2 lakhs, then remaining 60 lakhs के लिए 0.5%. Okay, that is how the EMD will be calculated. EMD calculate करने के लिए ये फॉर्मूला है, और मैक्सिमम EMD कितना लेना है, 1 crore, that's all. तो जोनल रेलवेज को पावर्स दे दिया 300 crores तक फाइनलाइज करने के लिए रेलवे बोर्ड ने। तो आपका EMD कैलकुलेशन अगर 1 crore से एक्सीड होता है, then you have to limit it to only 1 crore. और एक लोअर EMD और हायर EMD ये भी कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड गिवन रिलैक्सेशन टू टेक लेसर EMD और हायर वैल्यू ऑफ EMD इन कंसल्टेशन विद FNCO. लेसर EMD क्यों लेते हम, बहुत पार्टिसिपेशन ऑफ टेंडर्स होना चाहिए, बहुत कंपटीशन होने के लिए स्मॉल वर्क्स के लिए। इफ यू वांट टू हैव मोर कंपटीशन देन यू हैव टू रिड्यूस द EMD. आपका EMD अगर बढ़ के है तो स्मॉल टेंडर्स they cannot come forward seeing that higher EMD value. They may be otherwise having the capacity to do the work. So in order to encourage new tenderers who are having lesser monetary potential, Railway Board has given zonal railways the power to lower the EMD, and similarly higher EMD also in case of high value tenders where you want to have only genuine contractors. मतलब जो मशहूर है, जो जिनियन है, जो ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू प्रोजेक्ट्स टेकअप करने का एक्सपीरियंस है, उसके लिए अगर इन एडिशन टू व्हाट रेलवे बोर्ड हैज स्टिपुलेटेड वो हायर EMD भी फिक्स कर सकते हैं। लोअर और हायर EMD कैन बी फिक्स्ड इन कंसल्टेशन विद FNCO। एंड अभी हमारा पूरा टेंडर्स ऑनलाइन में चल रहा है, इसलिए EMD तो ऑनलाइन पेमेंट ही होता है। जिधर मैनुअल में है, अगर मैनुअल उधर यू कैन टेक FDR और डिमांड ड्राफ्ट। अभी मेरे ख्याल से nowhere in Indian Railways there is a manual tendering, so all are online, so you are taking only payment through online only, NEFT payments.
And another important next term is performance guarantee. वर्क्स टेंडर्स में ये परफॉर्मेंस गारंटी 2006 में इंट्रोड्यूस किया इसको, इससे पहले नहीं था. जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 16(4) में यू कैन सी दिस परफॉर्मेंस गारंटी. ओके, नाउ एज पर दिस परफॉर्मेंस गारंटी लेटेस्ट सर्कुलर रेलवे बोर्ड का जो है कोविड के वजह से दिया, इंस्टेड ऑफ 5% यू हैव टू टेक ओनली 3%. अदरवाइज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस गारंटी कितना लेना है, टेंडर फाइनलाइजेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इश्यू करते हैं. वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिडिटी के अंदर टेंडर को देना, जो सेलेक्ट हो गया, जो एलिजिबिलिटी फुलफिल किया और जो लोएस्ट निकला, जो जिसको टेंडर कमिटी ने रेकमेंड किया और टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद पहले कम्युनिकेशन ज्यादा है, उसको बोलते हैं LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. सपोज आज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया सक्सेसफुल टेंडर, तो 21 दिन के अंदर विद इन 21 days दैट पर्टिकुलर टेंडरर ही हैज टू सबमिट दिस परफॉर्मेंस गारंटी इक्वल टू 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एग्रीमेंट वैल्यू हियर. Only 21 days. Then how long he can wait? Beyond 21 days, 68 days. So 21 to 60 days. Now this is called late submission of performance guarantee. इसके लिए उसको पेनाल्टी डिपॉजिट करना पड़ेगा. तो पेनाल्टी इंटरेस्ट ऑफ 12% फॉर व्हाट? फॉर लेट सबमिशन ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी. ये परफॉर्मेंस गारंटी किसके लिए सबमिट करना? फॉर साइनिंग द एग्रीमेंट. खाली लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इश्यू करने से ही कैनॉट क्लेम द पेमेंट. द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू साइन द एग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंटल ऑफिसर. फॉर दैट ही हैज टू सबमिट performance guarantee first. That is first within 21 days he has to submit. So he can submit lately also, but not beyond 60th day. So the late submission के लिए 12% is the penalty interest. Now I am telling you the latest circular of Railway Board, instead of 5%, Railway Board said only 3% only please collect up to 31 December 2023. This relaxation is given in view of this COVID pandemic. Okay, in order in view of this economic situation in the country, in order to encourage these contractors, they have reduced from 5% to 3% only, and these instructions will be in force only up to 31 December 2023. उसके बाद में जो भी रेलवे बोर्ड देगा उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस गारंटी परसेंटेज रहता. So they may ask you what is the current rate percentage of the performance guarantee given by the railway board. You can say it is 3%. Otherwise, standard is 5%. And these instructions will be there in force up to 31 December 2023, both for existing contracts and also the tenders which are opened before that date. ये भी railway board ने clarify कर दिया. And then performance guarantee कब return करते हैं इसको? पूरा काम होने के बाद, फिजिकली आफ्टर फिजिकल कंप्लीशन ऑफ द वर्क, द परफॉर्मेंस गारंटी विल बी रिटर्न्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर. ये परफॉर्मेंस गारंटी इसके लिए लेता है, इट इज अ गारंटी टेकन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द वर्क दैट ही विल परफॉर्म द वर्क. ओके, देन दिस विल बी रिटर्न आफ्टर फाइनल कंप्लीट फिजिकल कंप्लीशन ऑफ द वर्क. अब कब बोलते हैं फिजिकली कंप्लीट हो गया बोल के? व्हेन द final measurements are recorded by the department in the presence of contractor or his representative. Final measurement record होने का मतलब क्या है? Nothing is left. कुछ भी काम बचा नहीं, पूरा काम in all respects the work has been completed. At that stage, the departmental engineer, departmental officer, concerned site engineer, he will issue a certificate, that work completion certificate, after recording the final measurements. Based on the certificate, finance department will release this performance guarantee. Next, what is the mode of depositing this performance guarantee? क्या क्या मोड में डिपॉजिट कर सकते हैं? इसको FDR के रूप में दे सकते हैं, in the form of fixed deposit receipt or in the form of bank guarantee. Bank guarantee given by the banker standing as a guarantor between the railways and the contractor. Or they can give cash also. They can deposit through online. The
PG amount. Okay, that is about the performance guarantee. Suppose in case the value of the work goes up, okay, initially जो आपने contract value 1 crore का दिया, now after during the execution or at the final stage, the value of the work has gone up by 40% or 30%, whatever it is. जो भी extra value the contractor has done, for that extra value also 3% as of now or 5% of that extra value should be taken as a performance guarantee. So in case of excess performance of the work, so that is there are the instructions. So you can get a short notes. What is a performance guarantee and what are the salient features of that? So you can mention this. You can also mention that as per existing value board's instructions, the present performance guarantee value is only 3% and not 5%. And these instructions will be in force up to 31st/12/2023. Then the examiner will appreciate you because you are having updated knowledge of this particular instruction. That is the. You need not write value board's letter number and date. Just as per existing instructions, extent instructions or value board. All first. Next is security deposit. Security deposit, there is no relaxation. It is 5% of contract value. This will be taken as and when he starts progressing the work. Okay. Now, आपके पास already EMD है. In case of unsuccessful tenders, earnest money deposit will be returned immediately. Okay. Suppose, for example, there are 5 participants. Okay. You have to select only one. एक को select करते हैं जो ना lowest है, जिसका eligibility fulfillment है पूरा है. तो बाकी 4 unsuccessful बोलते हैं. उसका EMD तभी return कर देते. In case of successful tenderer, उसका EMD will not return. It will be converted into part of security deposit. Okay. वो 2% जो भी है उसको return नहीं करते. That gets converted into part of security deposit. Now अभी बचा कितना? 3%. Okay. This 3% security deposit, it will be recovered from the each bill, each running bill of the contractor. At what rate? At the rate of 10%, 10%, 10%, till it reaches 5%. So the maximum SD to be collected from the contractor is 5%. So the rate of recovery of the security deposit is 10%. So you may get a objective to what is the rate of recovery of SD from the bill? You should say 10. What is the total SD to be recovered? You should say 5% of the contract value. Okay. Then when it will be returned? After completion of the work and including maintenance period if any. Now some works के लिए there is a maintenance period. For example, bridge works में 6 months का maintenance period रहता है. वो maintenance period complete होने के बाद ये security deposit release करते हैं. So before releasing the security deposit, what is the condition to be fulfilled? The contractor should submit unconditional and unequivocal no claim certificate as per clause number 43(2) of GCC. So इसके बिना you are not supposed to release the security deposit. So the finance people will receive a letter with the approval of competent authority to release this no claim certificate. You have to see whether the contractor has given no claim certificate or not. Whether competent authority's approval, that is tender signing agreement signing authority, has given approval in terms of item number 11B. SOP भी powers रहता है, schedule of powers में ये release करने के लिए किसके पास powers है, वो भी connect करके आपके पास letter you will get from the department. It may be PC office, mechanical or electrical. So what is your duty? Your duty is to see whether the contractor has submitted no claim certificate as per clause 43(2) or not. Whether competent authority's approval is given under SOP or not. उसके देखने के बाद then you have to make the payment of the security deposit. You have to release the SD through online to that contract. Then, what is IRU SSOR 2010?
what is the abbreviation? This is abbreviation which says Indian Railways Unified Standard Schedule of Rates and Specifications for works and materials given by Railway Board with ID number. इसका मतलब क्या है? जब भी टेंडर शेड्यूल प्रिपेयर होगा, एस्टिमेट शेड्यूल इज नथिंग बट it shows what are the items of works required for completing the work. For example, ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या वर्क्स चाहिए? पहले रहता फाउंडेशन वर्क रहता, बेसमेंट रहता, वॉल्स रहता, प्लास्टिंग रहता, देन पेंटिंग्स, ये पूरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो एक एक वर्क के लिए क्या क्या आइटम्स है और क्या क्या यूनिट है, व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट इज द यूनिट रेट, this IRUSS, this list will tell you. इसको बोलते हैं Indian Railways Unified Standard Schedule of Rates. So this is given by Railway Board with identification number. हर एक काम के लिए सपोज फाउंडेशन वर्क रहता, उसके लिए एक आईडी नंबर है, उसमें in terms of quantum of that work, quantity of that work, whether it is in the CFT cubic feet, then what is the per rate cubic feet, वो पूरा this list will tell you. Suppose if it is painting, for every 100 square meters, square feet, what is the rate? Like that, just I am giving example. So you may get a question, what is IRUSSOR and what purpose it is made? So it is a list which shows various items of works with the unit, rate, description of the work, unit rate, and whenever the estimate is prepared, schedule is prepared, only these items will be picked up from this list. डिपार्टमेंट ओन इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए, ये रेलवे बोर्ड ने यूनिफॉर्म कर दिया सभी रेलवेज के लिए। अगर इधर साउथ सेंट्रल में गालाश बोले तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में भी गालाश, सेम आईडी नंबर विल बी देयर फॉर ऑल द रेलवेज। आवर जॉब इज टू इनकॉर्पोरेट ओनली दोज आइटम्स विद द सेम यूनिट, सेम रेट। इन केस देयर इज टाइम लैग ऑफ 1 year 2 years, इट शुड बी अपडेटेड। That means current market rates के हिसाब से वो रेट भी लेना चाहिए, उसके इसके बेसिस से एस्टिमेट बनता है आपको। बेस्ड ऑन दिस IRUSSOR एस्टिमेट हाउ मच इट इज गोइंग टू कॉस्ट, आपको कितना कॉस्ट हो रहा है इसके। सर इसको मेंटेन कौन करता है? सर मैडम मेंटेन कौन करता है सर IRUSSOR को? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैडम, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PC ऑफिस है ना, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। हर रेलवे अलग अलग करती है सर? हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो ये है मैडम, मगर दूसरा डिपार्टमेंट में नहीं ओके, हर रेलवे, प्रत्येक रेलवे, यस यस, सदर्न रेलवे, हमारा SC रेलवे अपना अलग अलग मेंटेन करते हैं सर? यस यस, they will have their own list, rates will be differed, item will be same मैडम, description of the work, unit पूरा सेम रहता, ID नंबर सेम रहता, only rate differ होता था। Rate based on the local agreements rates, local accepted rate, last accepted rates, only rate will differ. Otherwise, the rest of the thing will remain same. Okay, thank you. So this is the basis for preparing the estimate. Okay. Suppose in this list contains, say, suppose 500 items. Okay. Example I am just giving. Okay. Now, आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का 3-4 ऐसा आइटम्स है जिसमें ये लिस्ट में नहीं है, तो क्या करना? ओके, दे आर कॉल्ड एडिशनल नॉन शेड्यूल आइटम्स, इसको बोलते हैं एडिशनल न्यू आइटम्स, जो लिस्ट में फिगर नहीं हो रहे, तो वो भी बाद में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ये कब मालूम होता है? मालूम जब वर्क देने के बाद I will discuss that particular item when I come to that slide. Then that time you will understand more. And this is nothing but a standard schedule. Special conditions of contract. Question may come for you, what is the difference between the general conditions of contract and special conditions of contract? So, हर एक tender, हर एक works tenders, they will be guided by number 1, general conditions of contract 2020, जिसमें 64 clauses रहता, 64 conditions under 2 parts, part 1 and part 2. Then it will be governed by instructions to tenders. Then it will be governed by special conditions of contract. Then it will have tender schedule. Then it will also have drawings wherever it is applicable. So this whole thing will become tender document. So your tender document contains special GCC, general conditions of contract, special conditions of contract, instructions, tender schedule, plus drawings
if applicable. Now, GCC standard. GCC means General Conditions of Contract. ये हर एक टेंडर के लिए यूनिफॉर्म है, इसमें कुछ ये नहीं. Suppose if I say clause 61, ये क्या है? Foreclosure of contract. It applies to any work standard in any for any department. Whereas special conditions of contract are those conditions which are not reflected in the general conditions but are different, which from for the work related. ये जो भी वर्क है, सपोज एर्थ वर्क है, ब्रिज वर्क है, बालास्ट वर्क है, ये वर्क के लिए जनरल कंडीशंस के अलावा क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होना चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बनता है, उसको बोलते हैं स्पेशल कंडीशन. स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज related to the specific work wise. They are not uniform for all the works. They differ from work to work. Ballast, earthwork, bridge works, track works, whatever it is. So these are the. Suppose in case general conditions of contract और special conditions contract में एक जो conditions है reflect हो रहा है, इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, होता है कभी-कभी होता है, क्योंकि tender document it will run into so many pages. So condition may reflect. In that case, वो discrepancy भी रहता. Okay, GCC में एक condition है और special conditions में same condition having different percentages. तो in case of discrepancy, तो कौन सा prevail होता है? पहले बोर्ड ने बोला a special condition will prevail over the GCC. Okay. For example, I will give you an example of variation in quantities. Okay, variation quantities you will find in GCC under clause number 42. So उसमें जो percentage रहता, that book might have been printed some 2 years back. Okay, जिसका correction slip नहीं है. Suppose a board letter has come just before calling the tender, changing the percentage of the variation. तो ये department का जो भी बुला रहे हैं ना tender, तो they have to take those percentages and incorporate in the special condition. So sometimes you will find this discrepancy not in many conditions, but 1 or 2 conditions. In that case, Railway Board said your special condition will prevail, will have overriding effect. मतलब GCC हट के special condition will become applicable. वो भी हम instructions में specify करते हैं. This is about thing. Another important feature you can see here, 20% limitation clause on claims amount. तो ये रेलवे बोर्ड, ये तो हर एक रेलवे में नहीं है. As far as I know, this particular clause is incorporated in the special conditions of contract only by few railways like South Central, Eastern Railway, Bombay Central Railway, but it is not there in the GCC. This is different. So you may get a question: what is this 20% limitation clause on claims? Suppose I have floated a tender for 1 crore. And we have given agreement value for 1.5 crores. Example I am telling. Okay, with a 6 months time completion. Then 6 months time में ये work हो नहीं पाया. इसके लिए 1 साल होना पड़ा. मतलब extra 6 months time we have given. Finally, what is the value of work done? 1.5 crores. What is the original agreement value? 1 crore. तो additional 50 lakhs काम हो गया और extension भी हो गया. इस बीच में कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ क्लेम रेज किया, सर आपके वजह से मुझे डिले हो गया और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आई हैव टू इनकर, लाइक दैट ही विल से. दे आर ऑल कॉल्ड क्लेम्स. वो रनिंग रेगुलर बिल्स के अलावा वो क्लेम रेज करता. तो क्लेम अटेंड करने के लिए जीसीसी में आपके पास एक 2 क्लॉजेस है लास्ट में, 63 एंड 64. उसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स. ओके, suppose in case the contractor is claiming other than the regular payments like a compensation for loss or actual payment not made, some excess payment has to be made, उसको बोलते हैं claims बोलते हैं. जो claims डिपार्टमेंट वाले नहीं दे सकते उसके लिए कौन अटेंड करते हैं? आर्बिट्रेशन बोलते हैं उसको. तो he has to restrict his claim amount only to 20% of the agreement value or executed value, whichever is less. मेरा एग्रीमेंट वैल्यू इसमें कितना है? 1 करोड़. एग्जीक्यूटेड वैल्यू कितना है? 2.5 करोड़. तो आई विल लिमिट टू ओनली 1 crore 20%. दैट मींस 20 lakhs only he can raise the claims. He can limit his claims. It is subject to adjudication. It will be referred to arbitration.
आर्बिट्रेशन जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है. It will be decided based on the merits, proof, documentary proof, so many things. He may get 0 or he may get only a small percentage. So this is the meaning of this 20% limitation clause on claims. It will be restricted to only 20% of agreement value or executed value, whichever is less. Only will be referred to arbitration. That will be decided by the arbitration is nothing but court. The departmental officer will be appointed by the general manager, who is independent. इसका मतलब ये है. और एक इंसेंटिव बोनस क्लास है, ये भी स्पेशल कंडीशन में रहेगा. सपोज आपने 12 मंथ्स कंप्लीशन के लिए दिया, मगर कॉन्ट्रैक्टर में 10 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया. मतलब he has done 2 months ahead of the original schedule. तो वो 2 महीने के लिए उसको इंसेंटिव देते हैं. कितना? 1% of the contract value. In addition to his regular work value, you will be given 1% of that particular contract value every month, and it should not exceed 6%. And this will be only in doubling and traffic facilities. ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देते हैं, खाली डबलिंग और ट्रैफिक फैसिलिटीज बोलते हैं. इसको माइलस्टोन वर्क्स बोलते हैं. माइलस्टोन वर्क का मतलब क्या है? जो टाइम के अंदर कंप्लीट होना है प्रोजेक्ट, अदरवाइज फंड्स लैप्स हो जाएगा. इसके वजह से उसको इंसेंटिव बोनस क्लास दे दिया. इट इज 1% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एवरी मंथ फॉर एवरी कंप्लीशन एंड मैक्सिमम लिमिट इज 6%. वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करना हो टेंडर के साथ साथ, वो जो भी पर्सनल है उसके पास, टेक्निकल पर्सनल, नॉन टेक्निकल, क्या प्लांट है, क्या मशीनरी है, और वॉट एवर वर्क्स ही हैज कंप्लीटेड इन द लास्ट 3 years. These are certificates just to prove his credentials. So what are the documents to be submitted? This. Then the special conditions. So yeah, next. There's modes of tendering में discuss. Now we will come to modes of types of tenders. Tenders कितना टाइप का होता है? फर्स्ट वाले ओपन और एडवर्टाइज टेंडर. जो भी आप पेपर में देख रहे हैं, they are all open tenders or advertised tenders. Next type is limited tender, and the third type is special limited tender, and the last one is single tender. Powers किधर दे दिया गया? पार्ट ए मतलब SOP आप देखा होगा. You might have seen the SOP. It contains in parts, part A, works matters, part B, medical, part C, miscellaneous, ऐसा. तो जो भी आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज का सब्जेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स है, वो पूरा you will find in part A, works matters. So under that, you please focus on item number 5 से लेके item number 16 तक. You please focus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 like that. So each item will have a specific purpose. So powers for calling tenders is given under item number 5A. उसमें item number 5A1 में open tender बुलाने के लिए किसके पास क्या powers है? वो it is a reference book SOP. तो नेक्स्ट लिमिटेड टेंडर बुलाने के लिए 5A2 में है लिमिटेड टेंडर. स्पेशल लिमिटेड टेंडर 5A3. सिंगल टेंडर बुलाने में 5A4. तो इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस दिस विल बी कॉल्ड, वी विल डिस्कस वन बाय वन. लिमिटेड टेंडर्स विल बी कॉल्ड ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स. So you may get a question, what is approved list of contractors? In how many categories this list will be maintained? So for calling limited tenders, department should have approved list of contractors. Class A contractors, Class B and Class C. What is the monetary limit of the Class A contractors? The contractors who have executed works costing more than 1 crore up to 5 crores. पिछले 3 साल में जो कॉन्ट्रैक्टर 1 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्टर ने 5 करोड़ के ज्यादा करे तो भी he will come under Class A. During the last 3 years, they will be classified under Class A. Class B, medium contractors, 25 lakhs to 1 crore. Class C means small contractors, up to 25 lakhs. So this list is compulsory for calling limited tender, and each list should have 10 names minimum. अगर आपको limited tender बुलाने के लिए एक क्लास में minimum 10 names होना चाहिए. So you may get a short note. What is approved list of contractors? What purpose it is maintained, and what are the monetary limits of each class, and what are the other conditions to be fulfilled. So this you may get like that. Okay. Then if the list is having less than 10 names, you cannot call limited tender. Next is special limited tender. When this will be invited? The question may come, what is the special limited tender?
what are the conditions to be fulfilled? The special limited tender will be called in case of only specialized nature of works having element of urgency and consultancy works also it will be called. इसके लिए proposal के लिए finance का concurrence जरूरत है, whereas limited tender बुलाने के लिए finance concurrence जरूरत नहीं है. Special limited tender बुलाने के लिए finance का concurrence जरूरी है, जिसमें department में justification देना है. In what way this work is specialized? What is the element of urgency in this? So, and how, what names have been selected? तो contractors को जो select करते हैं ना, minimum 4. Okay, it should be more than, but not less than 4. एक का justification देना, एक contractor का जो select किया ना, बुलाने के लिए special limited tender. What are the credentials they are having? What is the previous experience of having executed the specialized nature work? All those things the proposal should contain. वो प्रपोजल फाइनेंस वाले कंकरेंस देने के बाद स्पेशल लिमिटेड टेंडर बुला सकते हैं. कंसल्टेंसी वर्क वाले तो सपोज रेलवे इज हैविंग वर्कशॉप्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, मैकेनिकल वर्कशॉप्स, वो वर्कशॉप को IS 9001 का स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना चाहते हैं. उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, एक्सपर्टीज नहीं. इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं. वो कंसल्टेंसी कैसे देते हैं, स्पेशल लिमिटेड टेंडर. जो भी वो कंसल्टेंट देता उसके हिसाब से we will develop the facilities conforming to ISO 9001 standards. Example है. This is about the special limited tender. Single tender. मैडम. सर कुछ इसका लिमिटेशन, अमाउंट का कुछ लिमिटेशन है क्या सर? लिमिटेड टेंडर और स्पेशल लिमिटेड टेंडर का? लिमिटेड टेंडर में तो लिमिटेशन है मैडम. 7.5. मगर SLT में नहीं है मैडम. स्पेशल लिमिटेड टेंडर में जो भी ओपन टेंडर का पावर्स है ना, उसके हिसाब से टेंडर स्पेशल लिमिटेड टेंडर बुला. ओके ओके, थैंक यू. सिंगल टेंडर लास्ट. ये सिंगल टेंडर आपको नेम ही पता, इट इज टेलिंग इट इज इनवाइटेड ओनली फ्रॉम सिंगल कॉन्ट्रैक्टर हु इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग एग्जीक्यूटेड इमरजेंसी वर्क्स, जैसा आपका फ्लडिंग में ब्रीचेस और ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन हो गया, और उसके वो कंडीशंस में वी कैन नॉट थिंक ऑफ कॉलिंग ओपन टेंडर. ओपन टेंडर बुलाने से क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है. तो इसमें आपका ट्रैफिक रेस्टोर होना चाहिए. इसके लिए ये सिचुएशंस में सिंगल टेंडर बुलाते हैं. इसके लिए आपके पास एस्टिमेट नहीं है, कुछ एंटिसिपेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास. ओके, दिस इज अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सिन. मोस्टली दीज वर्क्स विल कम ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, फ्लडिंग सीजन. तो वो टाइम पे ये लोग, खास करके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दे विल बी वाचिंग ऑल द लोकेशंस, वल्नरेबल लोकेशंस. तो ट्रैफिक डिसलोकेशन हो जाता, ट्रैक ब्रीचेस हो जाता. तो वो टाइम पे दे विल कॉल सिंगल टेंडर. दे विल सेलेक्ट वन एजेंसी विथ एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट. रफ एस्टिमेट बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट. वो प्रपोजल फाइनेंस को भेजते हैं, फाइनेंस कंकरेंस के लिए कितना होता है, और जो भी सिलेक्ट किया टेंडरर को सिंगल टेंडर के लिए, उसका क्या जस्टिफिकेशन है, whether he is in a position to take up this work, because a single tender within specified time में करना चाहिए. वो टाइम पे नहीं करे तो पर डे पेनल्टी लगता है उसको. वो पूरा स्पेशल कंडीशन में आता है, पर डे कितना पेनल्टी लगता है. तो ये सिंगल टेंडर, इसमें पावर्स दे दिया सिंगल टेंडर के लिए पावर्स. हेलो सर. हेलो. बोलिए सर, ये सिंगल टेंडर के लिए तो अर्जेंसी सर्टिफिकेट ही पर्याप्त है काम करने के लिए. सिंगल टेंडर में सर जो अर्जेंसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है सर. यस सर, ये मैं आपका नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा वो भी. तो ये जो वर्क होता है सर, एब्स्ट्रैक्ट बना के ही होता है क्या? इमरजेंसी काम के लिए होता है ना सर? मैं बताता हूँ अभी आपको. अर्जेंसी सर्टिफिकेट होता है जी. नहीं सर, इनका कहना है कि दोनों के एक चीज है या अलग अलग है? अर्जेंसी सर्टिफिकेट ये अलग चीज हो गया, सिंगल टेंडर अलग चीज हो गया, मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो. हाँ, यस. अर्जेंसी सर्टिफिकेट एक्चुअली इट हैज गॉट लिंक्ड विद दिस सिंगल टेंडर ओनली. ये ओके, these are the limits. Now you can see this slide, no, item number 16 में ये अर्जेंसी सर्टिफिकेट का स्पेशल रेवेन्यू में चार्ज होता है फंड्स ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आपके पास फंड्स नहीं है ना इसके लिए, ये इमरजेंसी वर्क्स टेकअप करने के लिए. तो इसमें PHOD का 25 लाख से बढ़ के 50 लाख तक उसको दे दिया. तो दीज आर एनीथिंग मोर देन 50 lakhs वो GM के पास है. ठीक है, ये अर्जेंसी सर्टिफिकेट फाइनेंस कंकरेंस होने के बाद, ओके, ये कब बनता है अर्जेंसी सर्टिफिकेट, इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं ये सर्टिफिकेट बनाते समय.
जब टेंडर बुलाते समय आपको इतना पक्का नहीं रहता, समझे, क्योंकि ये वो स्पॉट में डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, नेचर ऑफ द डिजास्टर, सपोज 10 करोड़ होता है, 15 करोड़ होता है, बहुत नुकसान होता है, तो इसका एक्यूरेट एस्टिमेट बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कमिटी ऑफ ऑफिसर वो साइट पे चले जाए, फाइनेंस वाले और इंजीनियरिंग वाले, तो तब का तभी एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट निकालते, मतलब रफ, तो उसके हिसाब से टेंडर शेड्यूल देते, उसके हिसाब से टेंडर एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर बुला के फाइनलाइज करते। उसके बाद में उसका जो डिटेल एस्टिमेट बनता, मतलब थोड़ा एक्यूरेट, उसमें जो भी अमाउंट आता है उसके लिए अर्जेंसी सर्टिफिकेट दे विल बी सेंडिंग टू द राइलर बोर्ड इफ इट इज बेस्ड ऑन द मॉनिटरी लिमिट्स गिवन हियर। उसका जो प्रोफार्मा है 1103 इंजीनियरिंग कोड में दे दिया गया, वो अर्जेंसी सर्टिफिकेट क्या क्या फिलअप करना है उसमें, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस। दिस शुड बी वेटेड बाय फाइनेंस and it will be sent to railway board, and after railway board allots funds under the special revenue, the contractor will be getting the payments. Of course ये तो बहुत फटाफट हो जाता है, क्योंकि एजेंसी सर्टिफिकेट का मतलब वही है। सर एक चीज और था, सिंगल टेंडर में EMD और SD लेगा कि नहीं लेगा? लेते मैडम, EMD भी लेते, SD भी लेते, एजेंसी में लेके नहीं लेंगे, एजेंसी में नहीं लेंगे। नहीं ऐसा नहीं हम लिए, टेंडर डॉक्यूमेंट कास्ट भी जमा है उन्होंने ऐसा नहीं थोड़ा सा क्लियर कीजिए सर प्लीज। मतलब सिंगल टेंडर में EMD और SD लेंगे? SD लेते मैडम, डिडक्ट हो जाता ना ऑटोमेटिकली वो। जैसा असल में आप खुद बोले कि समय नहीं है और काम करना जरूरी है, इसलिए सिंगल टेंडर मंगा रहे हैं, और एजेंसी में भी वही हाल होता है कि तुरंत काम करवाना है तो आप उससे EMD जमा करवाएंगे, एक्सेप्टेंस करवाएंगे, तो आपको टाइम लगेगा, तो EMD SD कैसे जमा होगा सर? और एक ही बुला रहे हैं मैडम। ये रेलवे बोर्ड में सिंगल टेंडर में EMD नहीं लेना, टेंडर डॉक्यूमेंट कास्ट नहीं लेना बोल के नहीं बोला मैडम, कहाँ भी। अच्छा ओके, वो ये समझिए, ये तो हमारा डिस्कशन भी है। हाँ नहीं, मैं डिस्कशन में इसलिए सोच रही हूँ, मैं इसलिए मेरे को कंफ्यूजन था कि हो सकता नहीं लेते होंगे, क्योंकि और एक एजेंसी सर्टिफिकेट में आप तुरंत काम करवा रहे हैं, उससे SD जमा करवाएंगे तब तक आपको लेट हो जाएगा, हो सकता है आप तुरंत काम करने के लिए बोल दे, उसका शायद फॉर्मेलिटी बाद में करे, हो सकता है, इसलिए। नहीं ठीक बात है आप जो बोला, और ये सिंगल टेंडर में उसको जबरदस्ती नहीं मैडम, उसको इनफॉर्मली बुला जाता है, भाई आपको ये वर्क का नुकसान हो गया, आप देख लिए, वो साइट पे चला जाता है कॉन्ट्रैक्टर, वो साइट में चला जाके उसको कितना होता है, और जो भी रेट्स, और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिंगल टेंडर में जो भी रेट्स डालता है ना, वो ओपन टेंडर्स का और उसका बहुत फर्क रहता है मैडम। हाँ। एक काम आपने 10 करोड़ का एस्टिमेट किया सिंगल टेंडर इमरजेंसी में, सबका तभी, तो शेड्यूल आप बनाते, शेड्यूल बनाने के बाद उसको देते, कितना कोड करता मालूम हो ना, ऑलमोस्ट 12 to 13 करोड़ सिविल कोड। ओके, मतलब ही विल टेक ऑल दोस थिंग्स, वो जो भी है ना, वो प्रीमियम लेबर को मूव करना, मशीनरी को मूव करना, और एक्स्ट्रा प्रीमियम में लाना तो काम करने के लिए, और टाइम लिमिट के अंदर जो काम करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर करता है वो पूरा इसमें डाल देते हैं। इसीलिए रेलवे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है, सिंगल टेंडर में भी जो भी काम हो गया है वो एस्टिमेट बनाने के लिए रेफरेंस में नहीं लेना। आप जब एस्टिमेट वेट करते हैं ना, आप पहले देख लीजिए वो सिंगल टेंडर का है नहीं तो ओपन टेंडर का है। अगर सिंगल टेंडर का है तो लेना ही नहीं, क्योंकि उसमें रेट्स बहुत ज्यादा रहता ऑटोमेटिक। सिंगल टेंडर तो सर आप खुद बुलाएंगे तो फिर वो तो रेट अपने डालेगा, लेकिन हमको तो जो शेड्यूल रेट है उसके आधार पे उसको हमको चेक करना चाहिए। मगर he will not do it that estimated rate what you have quoted as per IR USSO और जो भी है आपके पास, उसके हिसाब से नहीं करता उन्होंने जरूर उसके ऊपर बहुत परसेंटेज डालेगा, और उसके लिए कमिटी रहेगा। सिंगल टेंडर फाइनलाइज करने के लिए टेंडर कमिटी रहेगा जो 1 लेवल हायर रहता नॉर्मल। सपोज आपका सिंगल टेंडर का वैल्यू है 7 करोड़ है समझो एस्टिमेट में, नॉर्मली कौन करता है वो J ग्रेड लेवल वाले करते हैं। इफ इट इज अ सिंगल टेंडर, वो SA ग्रेड कमिटी बैठ के, फाइनेंस इंजीनियरिंग और दूसरा थर्ड मेंबर भी रहता, वो बैठ के वो पूरा उससे बात करके नेगोशिएशंस भी कर दे। अगर वो ज्यादा डाले तो नेगोशिएशंस का फैसिलिटी भी है एज पर CBC गाइडलाइंस, रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस। जो भी जब भी टेंडर ज्यादा रेट कोट, इवन ओपन टेंडर में भी अगर ज्यादा रेट कोट किए तो उसके क्या फैसिलिटी है, हम टेंडर नेगोशिएशंस को इन्वाइट कर सकते हैं। किसको इन्वाइट कर सकते हैं? ओनली द लोएस्ट फेलो, एलिजिबल फेलो। इसमें सिंगल टेंडर में भी वही करते हैं, कमिटी वाले डायरेक्ट उससे शेड्यूल ले देते मैग्नीट्यूड ऑफ हिसाब से।
तो तब का तभी वो नेगोशिएट करके दे देते उसको परसेंटेज। इसीलिए वो एस्टिमेट बनाने के लिए सिंगल टेंडर फाइनलिस्ट का एग्रीमेंट टच भी नहीं करना चाहिए, उसको अलग से रखना चाहिए। और एलओए में जब देते हैं ना सिंगल टेंडर फाइनलिस्ट होने के बाद, दीज रेट्स शुड नॉट बी टेकन फॉर एनी अदर रेफरेंस पर्पस। ओपन टेंडर में फाइनलिस्ट करने के लिए भी ये रेफरेंस में नहीं लेना, सिंगल टेंडर का मतलब वही है। ओके, थैंक यू। दीज आर द कंडीशन, सो मेनी थिंग्स हैव टू बी ऑब्जर्व। और कोटेशन का ये टेंडर फाइलेशन का लेटेस्ट पावर्स है, आपको बिट्स में आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में अप टू 50 लाख के लिए नो कमिटी मैडम, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस है। मतलब ई टेंडर में, अभी ऑनलाइन टेंडर में जो भी बुलाते हैं अप टू 50 लाख डायरेक्ट एक्सेप्टेंस है। और मोर देन 50 लाख अप टू 4 crores ओनली 2 member कमिटी, उसमें फाइनेंस मेंबर का बहुत कंपलसरी है। कमिटी में फाइनेंस का मेंबर का कंपलसरी, थर्ड मेंबर विल बी सिस्टर डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो एसएनटी होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, दूसरा चीज है। पहले बोर्ड ने बोला मोर देन 50 lakhs to 4 crores। You may get a question for night, what is the level of what is the composition of the tender committee for a tender value of 3 crores? You can say 2 member, and in that finance member is a must. If it is more than 4 crores up to 300 crores, it is a 3 member committee. तो उसका एक्सेप्टेंस पावर से है, देखिए एसए ग्रेड, डीआरएम, सीएचओडी, एसए ग्रेड, ये these are the monetary limits, latest monetary limits. नेक्स्ट स्लाइड विल सी कोटेशंस। अभी मैं टेंडर बोल रहा था, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग टेंडर डायरेक्टली कोटेशन रूट में, मतलब दिस इज आल्सो लाइक ए लिमिटेड टेंडर, डायरेक्टली वी आर इशूइंग कोटेशन टू मिनिमम 3 टेंडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर हैविंग reputed experience. Okay, this will be done only in case of small emergency works, minor value emergency works. मतलब 10 लाख के अंदर अगर है तो not routine type of works. Okay, for example, जब ब्रिज प्रोसेस रहता, कभी कभी ट्रैक में ब्रिज, स्मॉल ब्रिजेस रहता, 2 span 3 span ऐसा वाला, वो अप्रोचेस में कभी कभी earthworks, the approaches will be very big, earth formations, उसका कास्ट है जब 6 lakhs 8 lakhs उसके अंदर हो जाता है, मगर वो इमरजेंसी है, उसके लिए ओपन टेंडर बुलाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और पेपर कास्ट, पब्लिकेशन एक्सपेंडिचर पूरा रहता है। तो उसके लिए ये माइनर इमरजेंसी वर्क्स बोलते हैं उसको, उसके लिए डायरेक्ट कोटेशन रूट में जो टेंडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के पास एक्सपीरियंस है वो काम करने के लिए, 3 एक्सपीरियंस फर्म्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर नॉट हैविंग लिंक, वो भी इंपॉर्टेंट है, दे शुड नॉट हैव एनी लिंक बिटवीन देम, बट वी कांट हेल्प इट, that is a different thing, but Dial Board said 3 different experienced contractors quotation बेच के तो एक हफ्ते के अंदर, and this work should be completed maximum within 1 month, not more than that. सर इसमें अप्रूव लिस्ट का कोई कॉन्ट्रैक्टर भी होना चाहिए क्या? ये कहीं पर पढ़ी? That is our discretion, madam. इसमें कोई जरूरी नहीं है that we should call only from the approved list. The selection is purely left to the discretion of the department. ये हो सकता है अप्रूव लिस्ट में भी फिगर हो सकते हैं, मगर कंपलसरी नहीं, अप्रूव लिस्ट से ही लेना होगा। उसमें कहीं पर लिखा था कि अप्रूव लिस्ट के कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, मैंने मस्ट नहीं है कि नहीं होना, मस्ट नहीं है वो लिमिटेड टेंडर के लिए। मैं अभी आपसे कोटेशन के बारे में डिस्कस करूं, कोटेशन नहीं है। हाँ नहीं, कोटेशन में भी कहीं पर पढ़ी थी सर कि वो भी होना चाहिए करके, इसलिए पूछ रही हूँ मैं, मैंने कंफर्मेशन चाहिए सर। ओके हाँ ओके, ये दिया ना मैं, quotation should be taken from at least 3 experience from, not necessarily born on the approved list, मतलब not necessary, they can be from other than the list also, उसका मतलब वो है। ओके ओके, थैंक यू। ये जो पावर्स है आपको पूछ सकते हैं, व्हाट आर द जे ग्रेड ऑफिसर्स पावर्स फॉर कॉलिंग कोटेशन, यू कैन से 5 lakhs पर केस एंड इट्स एनुअल लिमिट इज 60 lakhs। एसए ग्रेड के लिए 10 लाख तक है और उसका एनुअल लिमिट है 1.2 crores। Or who can exercise these powers? Only the officers who are in the field, not in the headquarter office. Headquarters में बहुत HODs रहते, 8-10 जने रहते, एक लेके एक 1.2 crores ऐसा नहीं है, मगर रेलवे बोर्ड ने बोला ये फोर्स बहुत स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए, मतलब सोच समझ के, जो जरूरी है वो जिसके लिए एस्टिमेट में प्रोविजन है वो भी पूरा फुलफिलमेंट होना, these are the things. That means the provision should be there in the estimate to make the payment. तो रजिस्टर इसके लिए मेंटेन करना, फाइनेंस का कंकरेंस जरूरत है इसमें, कोटेशन बुलाने से पहले
और कोटेशन फाइनलाइज होने के बाद जो वैल्यू होता है ना उसके लिए भी वेटिंग चाहिए फाइनेंस का। दीज आर द कोटेशन पावर्स। नेक्स्ट ये टेंडर एक्सेप्टेंस पावर से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैं आपसे। टेंडर नोटिस, इसमें एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। आइडियल टेंडर नोटिस पीरियड मतलब जिस दिन आपका टेंडर पब्लिश हुआ ओपनिंग होने तक कितना टाइम लैग रहना चाहिए? 30 दिन एक्चुअली। 30 days should be minimum for open tenders. It can be reduced to 21 days with the approval of DRM or CAO. It can be reduced. It can be even reduced up to 14 days with concurrence of the finance. Okay. ये short notes question. What is the tender notice period? You can say it is 30 days from the date of publication to date of opening, and it can be reduced to 21 days with the approval of DRM, and it can be even reduced to 14 days with the concurrence of associate finance. जब भी आप पब्लिकेशन टाइम का नोटिस पीरियड कम करते जा रहे हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ लेस कंपटीशन, है ना। ये कंपटीशन पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक टेंडर ने 15 दिन के बाद देखा होगा और 21 दिन के बाद देखा होगा, उसके वजह से ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू पार्टिसिपेट। तो वो भी रिस्क है, वो तो डिपार्टमेंट वाले जस्टिफाई करना, दैट इज डिफरेंट। सो आइडियल टेंडर नोटिस पीरियड शुड बी 30 days. So this is about the tender notice period, and tender notice also should be very brief. It should not run into entire long page जिसका पब्लिकेशन कास्ट ज्यादा हो जाता है आपका टेंडर वैल्यू के बढ़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत कंसाइज ब्रीफ होना चाहिए, जिसमें ये रहना नेम ऑफ द वर्क, लोकेशन, कास्ट कितना है, टेंडर डॉक्यूमेंट का कास्ट कितना है, EMD कितना है, पीरियड ऑफ कंप्लीशन कितना है, और कब ओपन कर रहे हैं, कौन सा टाइम पे, और पूरा डिटेल्स के लिए व्हाट इज योर वेबसाइट एड्रेस, बस यही देना है। दिस शुड बी पब्लिश इन ऑल द लीडिंग लोकल वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स। दिस इज अबाउट द टेंडर नोटिस पीरियड। अग्रीमेंट साइनिंग करने के लिए पावर्स क्या है? ये टेंडर फाइनलाइज होने के बाद आप परफॉर्मेंस गारंटी लेने के बाद, LOA देने के बाद परफॉर्मेंस गारंटी विल टेक एंड यू विल कॉल द टेंडरर, मीन सेलेक्टेड टेंडरर फॉर साइनिंग द एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए आइटम नंबर 6 में पार्ट ए में पावर्स दे दिया गया। सीनियर स्केल ऑफिसर को 4 करोड़ तक है, मतलब सपोज 3 करोड़ का टेंडर जे ग्रेड ने एक्सेप्ट किया, मतलब सीनियर स्केल ऑफिसर कैन साइन द एग्रीमेंट। नेक्स्ट जे ग्रेड ऑफिसर मोर देन 4 crores अप टू 20 crores, एंड SA ग्रेड ऑफिसर मोर देन 20 crores अप टू 100 crores, and anything more than 100 crores PHOD. Of course, zonal railways will not have anything more than this thing, so almost everything will be done below 100 crores only. Because these powers have got linked with the sanctioning of extension of time, interrelated. That is why these powers are very important. Item number 7, this is additional SSR. इसका मतलब है, आप पहले मैं आपको एक स्लाइड में बताया था IRU SSOR, that is a standard list है आइटम्स। उसके अलावा दूसरा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ SSR, उसमें से 2-3 आइटम्स चाहिए काम करने के लिए, मगर एस्टिमेट प्रिपेयर करते समय, शेड्यूल प्रिपेयर करते समय वो चीज इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए सेम कॉन्ट्रैक्टर से दूसरा SSR पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसा रहता है SSR में, तो उसमें से थोड़ा आइटम्स लेने के लिए, काम करने के लिए इंट्रोड्यूस करना है प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, उसका पावर्स दिया गया है आइटम नंबर 7 में, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल SSR आइटम्स। Next slide will tell you introduction of new non-schedule items. अभी देखिए, SSR is different, NS is different. SSR is already there in the list, whereas these non-schedule items are those items which are not there in the SSR list. अगर उसका वो काम का जरूरत पड़ा जब काम करते समय, तो कैसा करना? सेम कॉन्ट्रैक्टर से करना, नहीं तो दूसरा टेंडर वो स्टेज में बुलाना। So it is impracticable to call a separate tender, okay, from the same separate from the different tender to execute at that point of time. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो 50% 60% काम होने के बाद आपको 2-3 चीज आइटम्स एक्स्ट्रा जरूरत पड़ा जो SSR लिस्ट में नहीं है, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल नॉन शेड्यूल आइटम्स। उसके बिना वो काम पूरा नहीं होगा, इट विल रिमेन इनकम्प्लीट। तो उसके लिए पहले कॉन्ट्रैक्टर नोटिफाई करेगा
डिपार्टमेंट वाले नोटिफाई नहीं करते। डिपार्टमेंट वाले क्या सोचते हैं, हम जो एस्टिमेट बनाया, जो शेड्यूल बनाया, उसके हिसाब से पूरा काम होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं, सर ये शेड्यूल एग्रीमेंट में आपका ये 2-3 चीज आइटम नहीं है, तो मैं कैसे करूं, इसके बिना आपका वर्क इनकम्प्लीट हो जाता है। तो डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, वो जस्टिफिकेशन सही है नहीं तो वो जो काम जो बोल रहे हो एडिशनल आइटम, वेदर इट कैन बी मेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेड्यूल। कभी कभी ऐसा हो सकता है एक आइटम में that is already included, but these contractors, some people are very cunning, very wise, they will misinterpret, जानबूझ के ये भी करते हैं, सर ये आइटम नहीं है, इसके लिए आप इंट्रोड्यूस करो। तो पहले डिपार्टमेंट में क्या देखना, whether that item what contractor is notifying जो existing schedule of items में है कि नहीं, पहले वो देखना चाहिए। अगर नहीं है तो then they have to propose and they have to take the finance concurrence। तो इमीडिएट इंट्रोड्यूशन करने के लिए विदाउट फाइनेंस कंकरेंस कहां तक कर सकते हो, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और 5 lakhs इन अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिचएवर इज लेस। दीस पावर्स कैन बी यूज्ड बाय द यूटिलाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट, क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए। तो रेलवे बोर्ड हैज गिवन विदाउट फाइनेंस कंकरेंस ओनली दिस लिमिट। इफ इट इज मोर देन दैट देन दे हैव टू टेक फाइनेंस कंकरेंस। सर एनी एग्जांपल? एक ट्रैक मेंटेनेंस काम कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें बैलास्ट मैं भूल गया, मतलब डिपार्टमेंट वाले एक 400 क्यूबिक मीटर्स का बैलास्ट कुशन जो रहता ना, वो जस्ट दे फॉरगॉट। ओके, दे हैव केप्ट ऑल अदर थिंग, रिमूवल ऑफ द ओल्ड फिटिंग्स, अप्लाइंग ग्रीजिंग, वो पूरा है आइटम्स है। अगर ये पूरा करने के बाद जो कुशन के लिए जो बैलास्ट आइटम है वो नहीं है, तो अभी बैलास्ट को इंट्रोड्यूस करना, कितना 200 क्यूबिक मीटर्स और व्हाट एवर इट इज। तो this contractor will notify, sir this ballast is required because the gap is coming। तो ballast हो जाता है एडिशनल इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एनएस आइटम। तो उसके लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग से देंगे सर बलास्ट के लिए, फिर जैसा रहेगा इसीलिए नहीं दे सकते ना, वही कॉन्ट्रैक्टर से करना पड़ेगा। which contractor will come to the spot and do only this work, it will become infringement। ऐसा है ना, पूरा जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर है वो पूरा खोल के रखा है, वो पूरा उसका मटेरियल, वो जो टूल्स भी है, उसका लेबर है, पूरा स्प्रेड आउट है। वो टाइम पे दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आके ये एक ही आइटम के लिए ही कैन नॉट इंटरफियर एंड डू द वर्क। तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर से ये करना पड़ेगा जो भी नया आइटम है, समझे? ओके। तो दैट इज इन इंजीनियरिंग, स्पेशली इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट। ब्रिज वर्क्स में, अर्थ वर्क्स में दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आएगी भी नहीं, क्योंकि उसको फीजिबल नहीं रहता, उसको तो फीजिबिलिटी नहीं रहता उसके पास। तो इसके लिए सेम कॉन्ट्रैक्टर से रहना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम आता है कहाँ, अभी मैं तो इंट्रोड्यूस करने के लिए डिपार्टमेंट रेडी हो गए, अभी प्रॉब्लम विल कम वेयर, जस्ट थिंक, रेट का प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? जो न्यू आइटम जो ऐड कर रहा हूं उसके लिए तो डिपार्टमेंट मांग रहा है, ठीक है भाई आप ये काम कर ले, ये एक्स्ट्रा आइटम भी, तो इसके लिए रेट कॉन्ट्रैक्टर ने पूछेगा एक रेट। सपोज बैलास्ट बोल रहा हूं मैं, बैलास्ट की लास्ट 600 रुपीज, वेयर एज डिपार्टमेंट विल प्रपोज ओनली 500 रुपीज। डिपार्टमेंट वो लोग बताएगा भाई हमारे पास एग्रीमेंट है, इसमें आसपास में 500 रुपीज का है। वो बोलता है नहीं सर वो रेट बढ़ गया पीवीसी के हिसाब से, वो उसके हिसाब से 600 हो गया, दोनों लड़ लेते। तो नाउ दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ द रेट फॉर एक्स्ट्रा आइटम्स एडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए एक स्लाइड है, तो वो उसको 39(1) में आ जाता आपको। इसमें नहीं है एक्चुअली, हमारा दूसरा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का में है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल न्यू आइटम जिसमें रेट का सेटलमेंट नहीं हो रहा दोनों के बीच में, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। इन दैट केस हु इज हैविंग पावर्स, एचओडी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज हैविंग पावर्स। कौन सा क्लास के अंदर? 39(1). प्लीज नोट क्लास नंबर 39(1) ऑफ जीसीसी, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलता है इन केस ऑफ नॉन रिजोल्यूशन ऑफ द रेट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द रेलवे ऑफिसर फॉर एक्स्ट्रा आइटम एडेड इन द वर्क, चीफ इंजीनियर विल बी द
competent authority to decide the rates. Okay, अभी बैलेंस का कितना पूछ रहा है, ये 600 पूछ रहा है, डिपार्टमेंट वाले कितना प्रपोज कर रहे हैं 500, तो दोनों एग्री नहीं हो पाए, तो both these people will go to chief engineer and whatever decision chief engineer takes, that is final and binding as per which clause? Clause number 39(1). That is final. Suppose a chief engineer ने decide कर लिया 525 rupees, but whatever decision he takes, it should be based on the documentary proof. ऐसा बोल के नहीं है मैं रेलवे वाला हूँ, मैं इसको हेल्प करूंगा, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स में सहमत हूँ, वो हेल्प कर, ऐसा नहीं. इट शुड बी ए स्पीकिंग ऑर्डर, वो उसका जस्टिफिकेशन पूरा देना है, क्यों दे रहे, ऑन व्हाट बेसिस ही इज अवॉर्डिंग दिस, तो उसका स्पीकिंग ऑर्डर था. तो दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग बोथ ऑन रेलवे एंड द कॉन्ट्रैक्टर. दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एडिशनल एनएस आइटम्स एंड द रेट फिक्सेशन. वेरिएशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएशन. इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास. जो भी शेड्यूल में एस्टिमेट किया, एस्टिमेट बनाते समय दोस क्वांटिटीज आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन, स्पेशली इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में, एर्थ वर्क्स में, बालास्ट वर्क्स में, बिल्डिंग वर्क्स में और ट्रैक रेनल वर्क्स में जो भी क्वांटिटीज एस्टिमेट करते हैं वो पक्का नहीं है, एकदम पक्का नहीं है. दे आर बाउंड टू वेरी प्लस और माइनस 25%. सपोज इफ आइटम वाइज क्वांटिटी इज वेरिंग अप टू प्लस और माइनस 25%, वो सेम एग्रीमेंट रेट जो भी है एग्रीमेंट रेट वही मिलेगा. ओके, वेरिएशन इन क्वांटिटी up to plus or minus 25% item wise I am telling. The contractor will be paid the same agreement rate and conditions. Suppose that item quantity is going beyond 25% up to 40%, that is 125 to 140%. For example, ballast only I am telling. What we have estimated in the schedule is 1000 cubic meter. Now, after completion of the work, it has become 1450. ओके, ये 1000 क्यूबिक मीटर्स के लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए 500 का एग्रीमेंट रेट है. तो नाउ माय वेरिएशन क्वांटिटी हैज बिकम हाउ मच, 450 cubic meter extra. So at what rate I have to make the payment is to this extra 450 up to 25%, means up to 250 cubic meters, same agreement rate, that is same 500 rupees per cubic meter. Now it has gone beyond 1250, that is up to 450, extra 200 cubic meters. Now I will see the variation of 25 to 40%. Okay, for that it will have minus 2%. You see the agreement rate is coming down, it is not going up. 500 से कम हो रहा, जो variation limit between 25 to 40%. Okay, the quantity is going even beyond 40 to 50%. It is having another minus 2%, that is minus 4% reduction or 96% of the agreement rate. You see here, you see the observation here. As the quantity is going up, the agreement rate is coming down, inversely proportional. क्यों हो रहा है ऐसा? Actually उल्टा होना चाहिए ना, जैसा क्वांटिटी बढ़ रहा है रेट भी बढ़ना चाहिए. और ये रेट, ये क्वांटिटी जो बढ़ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड बहुत आगे बढ़ गया, मतलब 8 महीने का कंप्लीशन दिया. दिस इज टेकिंग प्लेस एट द मंथ ऑफ 8th month or say 7th month. So definitely some rates might have gone up, market rates or whatever it is. So Railway Board has given instructions that there is a reduction when the variation quantity is going up. तो आप एस्टिमेट बहुत कैजुअली बनाने से भी आपको फायदा हो रहा है रेलवे को उल्टा. तो इसका एक मतलब है, क्योंकि ये -2 और -4% क्यों हो रहा है. इनिशियल स्टेजेस में जो काम कमेंस करते हैं तब कॉन्ट्रैक्टर का इन्वेस्टमेंट, वो मोबिलाइजेशन जो एक्सपेंडिचर रहता है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है. वो जो जैसा पिकअप करता है काम, व्हेन ही पिक्स अप द पेस ऑफ द वर्क, द यूनिट कॉस्ट विल कम डाउन ड्यूरिंग द स्पीड फुल स्विंग ऑफ द वर्क. सो दैट इज द ब्यूटी. तो इनिशियल में जो इनकर करते हैं एस्टेब्लिशमेंट सेटअप करने के लिए, मशीनरी लाने के लिए, लेबर को मोबिलाइज करने के लिए, उसके लिए इनिशियल यूनिट कॉस्ट विल बी हायर देन इन द मिडिल एंड इन द लास्ट. So with that spirit of economics in mind, Railway Board has given this variation clause on this. So this will be available in your special conditions of contract. ये special conditions contract में रहता और ये GCC में 42(1) के अंदर भी रहता.
जीसीसी 4221 में ये परसेंटेज का बारे में स्पेसिफिक नहीं रहता, जनरल रहता। तो ये स्पेशल कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप टेंडर बुलाते समय जो भी रेलवे कोड इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या परसेंटेजेस के लिए क्या क्या दिया, उसके हिसाब से डिपार्टमेंट वाले टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वेरिएशन क्वांटिटी में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द वेरिएशन एंड व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ पेमेंट एप्लीकेबल फॉर द वेरिएशन। ऐसा सब बोल के एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वेरिएशन क्वांटिटी, यू कैन राइट दिस -2 -4 एंड व्हाट आर द एग्जेम्पशंस ऑफ द वेरिएशन, ये भी पूछ सकते हैं। दो चीज है, माइनर वैल्यू आइटम्स और एक फाउंडेशन आइटम, ये दोनों के लिए ये -2 -4 का एप्लीकेबल नहीं होता। रियल लेवल का बोलिए। हेलो हेलो, हाँ, एनी डाउट? हेलो, somebody is asking doubt, पूछिए। Please continue, sir. Okay, okay. So what I am telling is two items that don't attract this variation, वो दोनों क्या है, एक फाउंडेशन आइटम्स है और एक माइनर वैल्यू आइटम्स है। माइनर वैल्यू आइटम्स मतलब क्या है, द आइटम which is costing less than 1% of the agreement value is called minor value items. Okay, minor value items and foundation items. For these two in the schedule, they don't attract this variation, that is -2 or -4. Whatever agreement rate is there, the same will be paid to the contractor irrespective of the quantities executed. So that is another important thing about this variation. And the extension of time of contract. Extension of time of contract, who is having powers? जो एग्रीमेंट साइन किया उसके पास है एक्सटेंशन देने के लिए, और एक्सटेंशन दो तरीके से होता है। आई विल टेल यू दिस। Extension of time can be on two accounts. What is clause A? When extension of time is given on railways account, जो मैं क्लास के पहले बताया चेकलिस्ट के बारे में, वो चेकलिस्ट में अगर कुछ डिले हो गए तो साइट हैंडओवर करने में, नहीं तो पेमेंट रिलीज करने में और ड्राइंग्स अप्रूवल देने में, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, टाइम डिले हो गया रेलवे की वजह से, तब एक्सटेंशन ऑफ टाइम विल बी गिवन अंडर 17A ऑफ GCC ऑन रेलवेज अकाउंट। इसमें कॉन्ट्रैक्टर को कुछ कंपेंसेशन नहीं मिलता। इन स्पाइट ऑफ गिविंग एक्सटेंशन ऑन रेलवेज अकाउंट, ही विल नॉट गेट एनी compensation or loss of profit or anything. Only PVC benefit he will get if it is there in the agreement. अगर agreement में PVC है तो वो मिलता है, वो अगर नहीं है तो 5 करोड़ के अंदर है तो वो भी नहीं मिलता उसको। नेक्स्ट 17B है, रेलवे ने सब कुछ किया रेलवे की तरफ से, वो चेकलिस्ट पूरा फुलफिल किया, मगर कॉन्ट्रैक्टर ने डिले हो गया, उसका फेल्यूर की वजह से डिले हो गया, तो एक्सटेंशन देना है नहीं देना तो डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करेगा। एज पर आइटम नंबर 10 में जो भी एग्रीमेंट साइनिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा वेदर एक्सटेंशन शुड बी गिवन और टर्मिनेटेड। कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना, अगर एक्सटेंशन देना है तो 17B में देते कॉन्ट्रैक्ट के फेल्यूर से, इसमें लिक्विडेट डैमेजेस डिडक्ट करते। जो बिल आता है ना, आपका ड्यूटी क्या है, फाइनेंस, यू हैव टू सी द सब्सिडरी एग्रीमेंट। अभी मेन एग्रीमेंट साइन हो गया, उसमें उसके बाद में जब भी एक्सटेंशन देता है, जब भी वेरिएशन होता है और जब भी एनी कंडीशन विल बी मॉडिफाइड, तब सब्सिडरी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। सब्सिडरी एग्रीमेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम यू हैव टू सी वेदर इट इज अंडर 17A or 17B. If it is under 17B, immediately you have to deduct liquidated damages. ये 17B में per week how much percentage you have to deduct, that is given, and the total liquidated damages should not exceed 5%. So you may get a short, what is the total liquidated damages that is to be recovered from the contractor in case of extension given on railways account, contractor failure. You have to say 5%. It should not exceed 5% of the total contract value. There is simple 17, no A, no B. Force majeure है. Force majeure मतलब तो nobody can be held responsible. Neither railway nor the contractor. So, ये कब आता है situation? You can see here. In case of civil commotion, sabotage, epidemics, जैसा COVID है, वो pandemic की वजह से भी so many contracts got suspended. मतलब the rescheduling has been done. मतलब DP और currency
everything has been rescheduled to enable them to complete. जब भी नॉर्मल कंडीशंस रिस्टोर नहीं होता है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंशन में रखते हैं। फिर नॉर्मल कंडीशंस रिस्टोर होने के बाद उसको फिर काम करने के लिए रीशेड्यूलिंग ऑफ टाइम विल बी डन। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये तो बहुत रेयर है। फिर बाद में एडवांसेस भी दे सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवांसेस दैट कैन बी गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवांसेस, मोबिलाइजेशन एडवांस एंड मशीनरी एंड प्लांट एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस कितना दे सकते हैं? इट इज लिमिटेड, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू हाई वैल्यू ऑफ टेंडर्स ऑफ 25 crores एंड अबव। उससे कम है तो these advances will not be given, but advances देना है कि नहीं, that is left to the discretion of the zonal railway। ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपका टेंडर वैल्यू 40 crore है, उसमें मोबिलाइजेशन एडवांस, एमएनपी एडवांस रखना है नहीं रखना, वो डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन है। रेलवे बोर्ड में साफ कर दिया। अगर इनकॉर्पोरेट करे तो कितना 25 crores बढ़ के है तो करना। तो हाउ मच इट विल बी गिवन? इट विल बी लिमिटेड टू 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, okay, unrestricted to high value of 25 crores. It will be given in 2 stages. First 5% at the time of signing of the contract agreement, and balance 5% on mobilization of the equipments, establishment, machinery, etc., etc. 2 stages में देते हैं। ये इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस। कौन सा गारंटी से देते हैं रेलवे? दे हैव टू टेक सिक्योरिटी ऑफ 110%। सपोज आप 1 crore मोबिलाइजेशन एडवांस दे रहे हैं, कितना सिक्योरिटी लेना चाहिए? पहले यू हैव टू टेक 1.1 crore का सिक्योरिटी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनएससी और बैंक गारंटी और एफडीआर, किसान विकास पत्र, ये पूरा अमाउंट्स में दे हैव टू डिपॉजिट दिस फॉर 110%। ओके, देन दिस विल बी रिकवर्ड once contractor completes 15% and it will be completed before 85%. So recovery of advance with interest will be done between 15% to 85%. इसका मतलब ये है, सपोज कॉन्ट्रैक्टर ने 10% भी काम नहीं किया तो कैसा रिकवर करना है इसको? टाइम होते जा रहा है, कंप्लीशन टाइम एक्सपायर हो रहा, मगर कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट एबल टू डू द वर्क, तो क्या करना चाहिए आपको? जो भी बैंक गारंटी आपके पास है, immediately you have to send notice to the bank for encashment before 1 month of the expiry. बैंक गारंटी का जो भी है एक्सपायरी 1 month पहले फाइनेंस वाले बैंक को लिखना चाहिए कॉपी गिवन टू एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट फॉर एनकैशमेंट, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट डूइंग द वर्क। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एमएनपी कितना देना है? इट इज लिमिटेड टू 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और 75% ऑफ द मशीनरी कॉस्ट, व्हिचएवर इज लेस। ये देते हैं, इसको इंश्योरेंस करना है, इसको हाइपोथिकेशन करना है, क्योंकि रेलवे ने उसको अमाउंट दिया, ये रेलवे के नाम पे रहेगा। कब तक? जब तक वो ये पूरा रिटर्न पेमेंट वापस करेगा, मतलब इसको जो भी कॉस्ट है रेलवे को मिलने के बाद उसको हाइपोथिकेशन रिलीज हो जाता है। ये एमएनपी है। ये तो पावर्स दिया ना है इधर, रिलीज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के लिए। ये तो डिपार्टमेंट वाले कनेक्ट करेगा, आपका काम ये देखना सही पावर्स कनेक्ट किया कि नहीं। यू नो नॉट बाय हार्ट दिस आइटम नंबर्स, ओके, दिस आर ऑल डिफरेंस। और कभी कभी वेवर ऑफ लिक्विडेट डैमेजेस, सपोज लिक्विड डैमेजेस रिकवर हो गया, उसको वापस करने के लिए डिपार्टमेंट अगर प्रपोजल भेजे तो वेवर के लिए कंकरेंस देने से ही कंप्लेंट अथॉरिटी को अप्रूवल का पावर्स रहता। सो विदाउट कंकरेंस दिस कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ। सर नमस्कार। बोलिए सर, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ग्रांट ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस ऑफ 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो सर इसका किसके पास पावर है ये लिखने के लिए आया था? इसके पास वो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है ना, वो जो टेंडर एक्सेप्टिंग का पावर्स दिया ना, मैं 4 करोड़ 20 करोड़ 100 वो पावर्स है ना, वो जो भी टेंडर एक्सेप्ट करता है उसके पास ये पावर है। अगर सर 12% का रहेगा तो 15% तो भी टेंडर 12% का सवाल ही नहीं है, उसको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10% को लिमिट करना चाहिए बस। सपोज आपने 10 करोड़ का
देखिए 26 करोड़ का बुला लिया टेंडर। एडवांस कितना चाहिए देना चाहिए उसमें मैक्सिमम? 10% ऑफ 26 करोड़, 2.6, नॉट मोर देन दैट। इट इज आस्किंग 3 करोड़। रेलवे बोर्ड का पावर नहीं दिया ना। नहीं तो सर 3 करोड़ अगर रहेगा तो कौन देगा फिर उसको? 3 करोड़ को टेंडर का एडवांस का मतलब ही नहीं है। एडवांस, क्वेश्चन ऑफ गिविंग एडवांस डज नॉट अराइज। बट सर ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, अगर 100 करोड़ का टेंडर है और उसमें 30 करोड़ मोडवाई वाले दे रहे हैं तो कौन करेगा उसको सैंक्शन? 30% हो गया, 20%, मोर देन 10%, मोर देन 10%। मोर देन 10% का पावर नहीं है। मोर देन 10% का पावर टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास है ही नहीं है। अगर पूछे तो रेलवे बोर्ड को लिखना है, जोनल रेलवे। जोनल रेलवे मतलब जीएम हो गया सर? वही है ना, जीएम के पास भी पावर नहीं है ना। जीएम के पास भी पावर है, जीएम के पास पावर है 10% तक। वो रेलवे बोर्ड ने दिया। वो अगर 10% से ज्यादा पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्टर, ज्यादा पूछे तो पहले क्या करते हैं आप, 10% रिलीज कर देते हैं सिक्योरिटी लेके। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है ना उसके लिए बोर्ड को स्पेशल प्रपोजल भेजते हैं। अगर सकमशन से सहायता ऐसा है तो जस्टिफिकेशन देगी। अच्छा सर, ये कॉन्ट्रैक्टर को भी मालूम है। आप एक बात सुन लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्टर को भी मालूम है ही कैन नॉट आस्क मोर देन व्हाट इज स्पेसिफाइड इन द टेंडर। उसको मालूम है 10% बढ़ के नहीं मिलता बोलते तो क्या, अगर पूछने से भी स्टेट अवे डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, भाई आपको 10% तक ही मिलता बस। सर प्लीज अनम्यूट सर, चंद्रशेखर गाరు। हाँ चेतन सर। Yeah sir, I muted all the participants. We can take the queries at the last 10 minutes. Okay, please. Unmute చేయమంటారా మళ్ళా? Sir, already I muted the participants. Please continue. Okay sir. नेक्स्ट एजेंसी सर्टिफिकेट ऑलरेडी आई टोल्ड, मैं आपको बता दिया इसके लिए एजेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। फिर जोनल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक जोनल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा रूटीन वर्क्स है जो क्वार्टर्स रहता है, ऑफिस बिल्डिंग, सर्विस बिल्डिंग्स जो मेंटेनेंस करने के लिए, इसके लिए अलग अलग से टेंडर्स नहीं बुलाते। उसके लिए एक जोन क्लासिफिकेशन होता है। वो जोन के अंदर जो भी मेंटेनेंस वर्क्स है, व्हाइट वॉशिंग है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी रहता है, वो 1 साल के लिए 1 जुलाई से लेके 30 जून तक तो जोनल कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाता है। उसमें एक ही कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं जोनल कॉन्ट्रैक्टर। उसको क्या करते हैं, एक वर्क ऑर्डर देते हैं उसको। तो वर्क ऑर्डर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5 लाख। इससे पहले ये 2 लाख था, अभी 5 लाख कर दिया। तो ये 5 लाख के अंदर ये वर्क ऑर्डर्स देते, वो पूरा जोन में जो भी मेंटेनेंस वर्क्स है उसको कंप्लीट करने के लिए। इसका जोनल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 1 जुलाई से लेकर 30 जून। उसके अंदर सपोज एक 50 वर्क ऑर्डर्स है, 50 वर्क ऑर्डर्स में कॉन्ट्रैक्टर ने ओनली 45 कंप्लीट कर दिया, तो 5 कुड नॉट कंप्लीट। दे शुड नॉट बी कैरिड टू द नेक्स्ट जोनल पीरियड, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगर बच गए तो उसके लिए डीआरएम का अप्रूवल लेना चाहिए। एनी वर्क ऑर्डर गॉट डिलेड विद इन द जोनल पीरियड, कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड, उसके लिए डीआरएम का अप्रूवल लेना चाहिए। So you may get a question, short note question: what is the zonal contract? What is the value of work order? These things, and what are the works taken up under this zonal contract? So that type of question can be asked. So work order limit का zonal contract में कितना है वो भी पूछ सकते हैं। So like that. ये तो certificate of completion of works, ये 48(1) GCC में work complete होने के बाद the department has to give work completion certificate. इसमें ये वर्क पूरा हो गया, टेस्ट, फाइनल टेस्ट पूरा, व्हाटएवर इट इज, ऑल शुड बी सैटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड, मेजरमेंट्स, टेस्ट चेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मेंटेनेंस पीरियड होने के बाद, पूरा होने के बाद ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं। दिस कंप्लीशन सर्टिफिकेट विल बी यूज्ड एज अ क्रेडेंशियल। ये क्रेडेंशियल टेक्निकल एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए एक क्रेडेंशियल जैसा यूज करते हैं दूसरा रेलवे में, दूसरा डिपार्टमेंट में, दूसरा डिविजन में। तो ये देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर नॉट एब्सॉल्व बाय द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब क्या है इसका, 48(1) के अंदर मैं ऑलरेडी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, मगर 1 महीने के बाद मुझे पता चला सम इम्परफेक्शन, सम डिफेक्ट्स
नोटिस किया, सम श्रिंकेजेस ऐसा कुछ, तो मैं ये 48(2) के अंदर सेम कॉन्ट्रैक्ट को मैं बुला सकता हूँ, अरे भाई ये पूरा डिफेक्ट्स है, ये पूरा इंप्रूव करो। तो दैट पर्टिकुलर पावर रेलवे इज हैविंग 48(2), कॉन्ट्रैक्टर नॉट एब्सॉल्व बाय द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नंबर 45(1) के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर विल बी पेड फॉर द वर्क्स एज पर द मेजरमेंट्स। इसमें कॉन्ट्रैक्टर और उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जिसका पास GPA है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उसका प्रेजेंस में मेजरमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए 45(1) में अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन अगर रेज किए तो 1 वीक के अंदर रीमेजरमेंट्स करते हैं उसके लिए नोटिस। तो 45(1) में कॉन्ट्रैक्टर कैन टेक ऑब्जेक्शन ओनली वंस। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जेक्शन, रीमेजरमेंट्स डेट विल बी गिवन एंड व्हाट एवर मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन द सब्सिक्वेंट डेट वो फाइनल हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर मेरे पास ऑब्जेक्शन है बोले तो नहीं, 45(1) कंडीशन ऐसा है मेजरमेंट्स के लिए। ऑब्जेक्शंस की भी मैं कवर कर दिया। रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स कहाँ मेंटेन करना, ये MB का प्रोफार्मा है, ये इंजीनियरिंग कोड 1313 में मेजरमेंट्स MB बोलते हैं उसको। ये MB प्रिजर्व करने के लिए 10 साल तक रखना चाहिए। व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ MB? 10 years। एंड व्हाट इज द फॉर्म नंबर 1313 ऑफ इंजीनियरिंग कोड? इसमें ये मेजरमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसके लिए मिशन नंबर रहता, ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1314 में रजिस्टर मेंटेन करना, कितना MB कौन सा AN के पास है, तो पूरा रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। और रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट्स के लिए कितना क्या किसके पास क्या पावर्स है। अभी ये तो पुराना पे कमीशन के स्केल से है, अभी 4600 ग्रेड पे एंड अबव दे आर हैविंग पावर्स टू रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स। और रिकॉर्ड होने के बाद वो मेजरमेंट्स को टेस्ट चेक करने के लिए असिस्टेंट इंजीनियर कंपलसरी वो 25% टेस्ट चेक करना। ओके, मेजरमेंट्स फॉलोड बाय टेस्ट चेक बाय AEL और जूनियर स्केल ऑफिसर, स्टैंडर्ड इज 25%। एर्थवर्क्स बैलस्ट वर्क्स में 100% टेस्ट चेक करना वो भी। और बैलस्ट एर्थवर्क्स में सीनियर DL 25% चेक करना। तो आपके पास जब भी बिल आता है आप MB देखना, पहले उसके पास टेस्ट चेक रिपोर्ट देखना, और टेस्ट चेक में ये परसेंटेज जो भी AN करना, सीनियर DN करना वो करा के नहीं आप देखना, उसके बाद में आप पेमेंट पास करना। ये बिल्स रिकवरेबल है, ये आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। ये अकाउंट्स कोडल प्रोविजन में 1138 में बिल्स रिकवरेबल, जो अमाउंट हमको वापस आउटसाइड पार्टी से आना क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर का संबंध नहीं है, ये तो लाइसेंस होल्डर्स है, जो भी कैटरिंग स्टॉल्स है, बुक स्टॉल्स है, नहीं तो साइडिंग एग्रीमेंट्स में जो भी लाइसेंस में लिया, रेलवे लैंड और रेलवे प्रेमिसेस, उससे पैसे वसूल करना है। उसके लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले हैं, they have to raise the form A, that is called bills recoverable form. They have to write to the contract, licensee, that is party, outside party, give copy to the executive officer. तो ये इसको बोलते हैं बिल्स रिकवरेबल, मनी टू बी रिकवर्ड। ओके, दिस इज फिर कॉन्ट्रैक्टर लेक्चर, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, बिल्स रिकवरेबल रजिस्टर वो 1138 में फॉर्मेट है जो लेटर लिखने के लिए, और जो भी रजिस्टर मेंटेन करना है रिकवरेबल, उसमें नेम ऑफ द पार्टी शुड बी एंटर्ड, जिसमें कितना अमाउंट आना वो पूरा एंट्रीज होने के बाद उसका रिव्यू अकाउंट्स ऑफिसर वाले करना। So you can get a question, what is the bills recoverable, how it should be done. So as per accounts codal provision 1138 and 1139, this bills recovered should be done 1 year in advance. Please remember, the bills recovery will start from 1st April to next 31st March. That amount, license fee, should be recovered 1 साल पहले, और 1 year license fee will be recovered as a security deposit also. In addition to that, पहले 1 साल के लिए लाइसेंस फी और 1 साल लाइसेंस फी टुवर्ड्स सिक्योरिटी डिपॉजिट। दिस शुड बी डन बिफोर 31st of March of every year in the bills recoverable form, and this should be put up to your accounts officer for review. And wherever payment is not being received, executive should be informed in the same format. तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट क्या करते हैं, उसको टर्मिनेट करना, क्या करना, वो डिसीजन लेते हैं। फिक्सेशन ऑफ करेंसी हो गया, पोस्ट पेमेंट ऑडिट, तो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एलिजिबिलिटी है।
उसमें 35% है। मैं इसमें भी 50 लाख बढ़ गया है तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। इन दिस आल्सो देयर इज अ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी कंडीशन। बस इसमें पिछले 3 साल में 35% ऑफ एडवर्टाइज वैल्यू शुड हैव बीन कंप्लीटेड। ऑनगोइंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का भी चलता, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अलग है। इसमें टेक्निकल एलिजिबिलिटी इज डिफरेंट एंड फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी इज सेम ऑलमोस्ट। ये कौन सा वर्क्स आता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में? आउटसोर्सिंग, हाउसकीपिंग, पेस्ट कंट्रोल, कोच क्लीनिंग, ये पूरा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में आ रहा है। ये तो इंपॉर्टेंट अब्रिविएशंस है, क्या क्या है? IRPSM, कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, FCC। Small bit like questions, bit form questions can be asked. What is the expansion of this abbreviation? इसके लिए मैं थोड़ा आइटम्स बनाया था। Just you can see this. Some Shramik Kalyan portal is there. These are all labor legislations. इसमें I want to emphasize only on this 55D. Please pay attention to this clause 55D of GCC. इसको बोलते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट। इसके हिसाब से यू हैव टू डिडक्ट 1% सेस। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द बिल्स ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स? यू हैव टू से 1% एज पर दिस एक्ट। तो इन एडिशन टू GST, इन एडिशन टू इनकम टैक्स, यू हैव टू डिडक्ट 1% सेस, लेबर सेस बोलते हैं इसको 55D के मुताबिक। श्रमिक कल्याण पोर्टल, कॉन्ट्रैक्टर को LOA मिलने के बाद उसका पूरा डिटेल्स, जो भी लेबर है, कितना वेजेस पे कर रहा है, उसको LOA एंटर करके अपलोड करके उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद सेम थिंग विल बी वैलिड एज लॉन्ग एज ही इज डूइंग द वर्क्स। इसको बोलते हैं श्रमिक कल्याण। तो ये एनीबडी कैन सी कितना मिनिमम वेजेस पे कर रहे हैं उसको लेबर के लिए, पूरा उसका कल्याण के लिए, लेबर श्रमिक कल्याण पोर्टल। So these are some of the important items, and I'll discuss with you in the question form also how they can be asked. I hope this may be of very much useful to you in your upcoming examination. So आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। Any questions, anything if you want to ask, please. Participants, please raise the hands so that I will unmute. Now I'll share the PPT in the chat box. Please download. Yeah. Sarla ji, please unmute. Sir. बोलिए। EMD, SD और क्या बोलते हैं इसको, PG किस लिए जमा किया जाता है? एक क्वेश्चन आया था दरअसल में डिटेल में, क्यों जमा किया जाता है, उसके थोड़ा सा सही परफेक्ट एकदम जवाब चाहिए मेरे को। ठीक है मैम, पहले मैं आपको EMD के बारे में बताता हूँ। EMD का मतलब है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इसीलिए रखते टेंडर में, जो इंटरेस्टेड है, जो सिंसियर है पार्टिसिपेट करने के लिए, वही आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर सपोज आपको EMD नहीं है तो सभी ऐसी चांस ले लेते टेंडर डॉक्यूमेंट कास्ट भरने की, तो दे विल ट्राई देयर लक। तो EMD ओनली टू नो दी अर्नेस्टनेस, वो मतलब है अर्नेस्टनेस बोले तो सीरियसनेस, सिंसियरिटी, जो भी इंटरेस्टेड है उसके लिए EMD along with the tender they will do. अगर EMD जमा नहीं किया, वो एलिजिबिलिटी फुलफिल किया, उसका टेंडर देखा नहीं जाता बस। और EMD जो फाइनलाइजेशन होने के बाद जो अनसक्सेसफुल है उसको तुरंत वापस कर देते, जो सक्सेसफुल है उसका रिटर्न कर देते रेलवे, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कितना लेना है EMD, आपको बता दिया मैं, ये 2% अप टू 1 करोड़ है, 1 करोड़ तक 2% लेना, ठीक है। और 1 करोड़ से बढ़ के है तो आपका टेंडर वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू वो 0.5%, 0.5% ऑफ द। वो क्लियर है सर, केवल एक वर्ड में चाहिए मेरे को, EMD किस लिए लिया जाता है, SD क्यों लिया जाता है और PG क्यों लिया जाता है, एक वर्ड में। वो बाकी मेरे को मालूम है सर, EMD बता दिया ना, सीरियसनेस, नहीं तो अच्छा नेक्स्ट EMD ओके, सीरियसनेस। नेक्स्ट SD फेथफुल कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, नहीं तो आप कुछ बड़ा प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आप एडमिट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, काशन डिपॉजिट लेते हैं,
क्योंकि जो जब भी पढ़ाई करते हैं जो इक्विपमेंट नहीं तो कुछ तोड़ने फोड़ने से लास्ट में नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने के बाद वापस करते हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वैसे है पर फेथफुल कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो भी है उसके हिसाब से वो स्पेसिफिकेशंस वो कंडीशंस के हिसाब से काम करने के लिए वो सिक्योरिटी लेते। ये सिक्योरिटी है, इट्स लाइक ए वारंटी, सो वी आर टेकिंग फ्रॉम द, ये कंप्लीट होने के बाद रिटर्न कर देते हैं। कब उसका काम ठीक ठाक है, मेंटेनेंस में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसा, इसीलिए सिक्योरिटी लेते हैं, उसका इंटेंशन सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और पीजी मैं बोला 2006 से इंट्रोड्यूस किया मैडम, इससे पहले नहीं था। क्या कर रहे थे ये लोग, इससे पहले क्या करते थे ये लोग, एलओए लेने के बाद, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेने के बाद वो सोचते अरे हमको ये काम करने से कुछ पैसे मिलने वाला नहीं, उल्टा हमको नुकसान हो रहा, इसीलिए वो स्किप कर दे रहे और काम नहीं कर रहे। तो रेलवे बोर्ड ने क्या किया, अरे भाई ये परफॉर्मेंस गारंटी ले रहे, एग्रीमेंट साइन करने से पहले ही एक गारंटी जैसा ले रहे उनसे। ये उसका इंटेंशन कब पता चल रहा था, विद इन 2 मंथ्स, मैं बोला ना 21 दिन के अंदर वो भरना चाहिए। आप कब तक वेट कर सकते हैं, 2 महीने। ये 2 मंथ्स के अंदर उसका सिंसियरिटी, उसका इंटरेस्ट पूरा पता चल जाता। अगर नहीं दिए तो इमीडिएटली क्या करते हैं, वो टेंडर दोबारा बुलाते उसको फ्रेश। उसमें ये डिफॉल्टर हो गया ना, इसको पार्टिसिपेट होने से भी इसका कंसिडर नहीं करते। इससे पहले क्या था, 2006 से पहले 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो 10% काम करता, मिलता ही नहीं ये, इसीलिए उसके बाद में टेंडर बुलाते बैलेंस वर्क के लिए, उसको बोलते हैं रिस्क एंड कॉस्ट टेंडर बोलते हैं। वो रिस्क एंड कॉस्ट टेंडर का वैल्यू कितना हो जाता मालूम, आप ओरिजिनल एग्रीमेंट वैल्यू से बढ़ के बहुत कुछ हो जाता, तो वो रिकवर इनसे होना। तो वो एक्सपीरियंस की वजह से रेलवे बोर्ड ने 2006 में ये परफॉर्मेंस गारंटी, ये 2 महीने के अंदर उसका इंटेंशंस क्लियर हो जाता है, इसीलिए। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ नमस्ते सर। बोलिए सर, ये 2 पैकेट सिस्टम में वर्क में कितना करोड़ के बाद हम 2 पैकेट सिस्टम एलिजिबल है? जैसे कि सर्विस में जैसे 50 लाख है सर, उसी प्रकार से वर्क्स में, हाँ वर्क्स 50 लाख बढ़ गए तो। और एक स्लाइड मैं भूल गया, नाइस यू हैव रिमेंबर्ड मी, आई मीन ये 2 पैकेट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में 10 करोड़ से ज्यादा है तो कंपलसरी यू हैव टू कॉल इन 2 स्टेजेस सर। वो एक टेक्निकल पैकेट है, एक फाइनेंशियल पैकेट है। यस सर, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में 50 लाख के बढ़ गए है तो 2 पैकेट सिस्टम में बुलाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। The next Suryanarayan Shah, please unmute. यस सर, हो गया सर, मेरा क्वेश्चन हो गया सर। बोलिए। Okay, I am done with. Okay, thank you all. Yeah, any other queries? So there is a query in chat box. In which situation can we call limited tender? It's not there. Okay, you want to reply this? Yes, sir. In which situation we can call limited tender? Why not open tender? Chat box. So limited tender. Which situation? Open tenders are 99.5% general. Any department, state government or central government, public sectors, they go only for open tenders because they encourage more competition, more competitive price. Limited tender, of course, we are not able to maintain the list because of the lukewarm response or no response. Limited tender बुलाने के लिए मैं जो बोला अप्रूव लिस्ट चाहिए, अप्रूव लिस्ट के लिए कोई भी इंटरेस्ट
नहीं बता रहे। ये अप्रूव लिस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स कब से 1 जून से लेके 3 years तक रहता, मगर nobody is showing interest, nobody is giving any response. मगर रूल्स है अप्रूव लिस्ट बनाने के लिए। तो ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे एवरी डे टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नो डिवीजन इज हैविंग अप्रूव लिस्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास स्पेशल लिमिटेड टेंडर है। स्पेशल लिमिटेड टेंडर कब बुलाते हैं? स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ वर्क हैविंग एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी। वो नेचर ऑफ वर्क स्पेशलाइज रहना चाहिए, नॉट रूटीन टाइप ऑफ वर्क। रूटीन टाइप ऑफ वर्क है उसको ओपन टेंडर में बुलाते हैं बस। Mr. Rajesh, please ask your question. राजेश पूछिए, आपका क्वेश्चन पूछिए। सर ये लिमिटेड टेंडर कब मंगाया जाता है सर, और मंगाना क्यों आवश्यक है? नहीं वही बताया ना, लिमिटेड टेंडर के लिए अभी तो वो पेपर में है, वो रूल्स क्या है, ए क्लास बी क्लास सी क्लास है, उसके लिए अप्रूवल लिस्ट चाहिए। और ये एक टाइम पे 80s में मैं जब बता रहा हूँ 80s उससे पहले रेलवे का जो भी काम है वो बहुत यूनिक है। मतलब ये जो ट्रैक मेंटेनेंस वर्क्स है और ब्रिज वर्क्स है, ये ऑर्डिनरी सिविल वर्क से कंपेयर किया ना जाता है। तब ये लिमिटेड टेंडर का बहुत इम्प्लीमेंटेशन होता था। कभी कभी हम ओपन टेंडर इसीलिए जाते थे क्योंकि ये लिमिटेड टेंडर में जो रेट्स कोट कर रहे हैं वो सही है, नहीं तो ज्यादा कोट कर रहे हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, ये लिमिटेड टेंडर का सिग्निफिकेंस बहुत कम हो गया, क्योंकि हम हर एक रेलवे ओपन टेंडर बुला रहे हैं। जैसा न्यूज़पेपर में देख रहे हैं ना आप, बहुत सारे देखते, वो पूरा ओपन टेंडर्स है। तो ओपन टेंडर्स में आपको बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन रहता, कॉम्पिटिटिव प्राइस रहता और ट्रांसपेरेंसी रहता, पार्टीशन एटीट्यूड नहीं रहता, किसको सपोर्ट नहीं कर रहे। ये लिमिटेड टेंडर में एक चांस है, कभी कभी सिंडिकेट हो जाता है, रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, वो पूरा नहीं रहता। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये कंडीशंस जो भी है ना, एसडी, ईएमडी, पीजी, वेरिएशन, अर्जेंसी सर्टिफिकेट्स, कोटेशन रूट्स, उसको ले उसके ऊपर प्लीज फोकस ऑन देम। अदर थिंग्स यू कैन academically you can learn afterwards. Okay, you can know more things. Examination point of view में I think I have discussed enough with you. Okay, I think okay sir, I think no further, I hope there are no further doubts. Yes sir. Right of the session. Yes, sir. On behalf of PIRIFAM, I thank Sri M. Chandrasekhar sir for explaining in detail the contract management and also clarifying many doubts. Thank you so much, sir. Thank you, sir. The next, dear participants, we have a session at 3 p.m. Freight incentive. I request all to please log in by 3 p.m. today. Thank you so much. Thank you, sir.